जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं विटामिन एंड द मिनरल्स, जो छोटी थोड़ी अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. ओके, सो द जो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर दी macronutrients which are called the carbohydrate, lipids and the proteins. Okay, so carbohydrate which we have discussed, so now we are going to discuss about the proteins and the lipids together. Okay, so the first of all we are going to discuss about the proteins. As you know that the proteins in your books I've given. Okay, so I'm just going to take I'm just consulting your DNHE books. Okay, so whatever I'm teaching you all will find in your books. Okay, so nothing is out of the syllabus because you have to appear in the exam. So go and go and see the books. Okay, so you can open your DNHE one book, and this is the third chapter is going on. Okay, so proteins, if we talk about the proteins which are basically the bodybuilding. Okay, you must have known that when the persons they have start going to the gyms, they start having the amino acids. So what are the amino acids? Amino acids are the basic units of the proteins. Okay, so these proteins are which we actually have. Those are the basic units of the so many kind of the proteins are there, but every protein is having a different amino acid set. Okay, so we have only the 20 amino acids in all. Okay, so these are basically broadly they are classified into the essential and the non-essential amino acids. So essential 20 amino acids, they are broadly classified into the two broad categories, which are the essential and the non-essential amino acids. Essential amino acids are classified as they are not produced in our body. Okay, so this is the basic concept, that this is not produced in our body and we have to take it from our diet. Okay, so you have to if you want to have the healthy and balanced diet with the essential amino acids, so your body cannot just produce from inside the body. You have to take that essential amino acids in the diet. So you have to be very careful which kind of the amino acids you need and what are the essential amino acids and in what kind of the sources that it is present. So you have to see what kind of the diet you have to take and what kind of the sources in which the uh, those essential amino acids are present. So you have to be very careful as the nutritionist. Now dietitians, you have to work, so you have to see all the sources in which the essential amino acids are present, and otherwise also you have to take the balanced diet. But as far as the non-essential amino acids are concerned, that doesn't mean case non-essential amino acids essential नहीं होते हैं. They are equally essential. Non-essential name or the category of the amino acid doesn't mean that they are not actually required in the body. They are equally required in the body. They are equally important. Okay, equally important as the essential amino acids. Okay, so these are equally important, but but our body can produce in our systems. Okay, so whatever the food we take or and that is going through the your system, so your body can produce the non-essential amino acids in your body, but okay, but not the essential amino acids. So both the categories are equally important, but both the categories, they have only 20 amino acids in whole. So we have 1,000 kinds of the proteins. Okay, we have 1,000 kind of the proteins, but all proteins are made up of same 20 amino acids. Same 20 amino acids, a set of 20 amino acids in a different permutation combinations में वो join होते हैं and they can make a long chain of the amino acids. So they are called the peptides, but they can make in a different permutation combination different kind of the proteins they can actually form. Okay, so वही amino acids होते हैं 20, but हजारों तरह के proteins ये बनाते हैं और एक amino acid multiple time तक repeat भी हो सकता है. ठीक है, multiple time तक repeat हो सकता है और एक मल्टीपल टाइम रिपीट होके और फिर से रिपीट हो सकता है, बीच में और अमीनो एसिड्स फिर से रिपीट हो सकता है. हर बार डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में अमीनो एसिड्स और कोई भी प्रोटीन सेम सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स में नहीं होता. ठीक है, सेम काइंड ऑफ द protein, same kind of the amino acids and or they can make different kind of the proteins, और सारे के सारे प्रोटीन्स जो है वो सेम काइंड ऑफ 20 अमीनो एसिड से बने होते हैं, बट
किसी भी प्रोटीन में सेम सीक्वेंस नहीं होता अमीनो एसिड्स का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 20 ही अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास जो हजारों तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो पर जितने तरह के भी प्रोटीन्स हैं उनमें वही अमीनो एसिड होते हैं, पर हर किसी में अमीनो एसिड का सीक्वेंस सेम नहीं होता। सारे के सारे प्रोटीन्स में डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है, नंबर भी फर्क होता है। अगर सेम नंबर भी होगा अमीनो एसिड्स का, देन ऑल्सो दे डोंट हैव the same sequence. So every protein is diverse other than the different other protein, and they are named differently. Okay, हर प्रोटीन का नाम डिफरेंट होता है बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। इस बात को आप समझिए। सो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। सो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू बोथ ऑफ द मतलब टू एवरी स्टूडेंट, ओके, अबाउट द बोथ काइंड ऑफ द अमीनो एसिड एंड द नॉन अमीनो एसिड सीक्वेंस। अब बात आती है कि अमीनो एसिड्स, एक अमीनो एसिड क्या करता है, या 1 ग्राम ऑफ अमीनो एसिड 4 किलो कैलोरीज देता है एज दी कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो गिव्स दी 4 किलो एक्सक्यूज मी मैम। यस, हाँ जी अनुराधा जी, हाँ मैम जी। ये लर्न करने होते हैं सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल? बिल्कुल बिल्कुल, नेम ऑफ द अमीनो एसिड्स यू हैव टू लर्न, कैटेगरीज ऑफ द एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स यू शुड आल्सो लर्न, इनके सोर्सेज भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सा वाला अमीनो एसिड किस किस में प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको नहीं पता होगा व्हाट आर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड व्हाट आर द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो अपने क्लाइंट्स को कैसे आप, या अपने जो आपके पास डाइट लेने आएंगे लोग, कैसे कैसे गाइड करोगे? बिकॉज यू शुड नो अबाउट दी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो बॉडी में बन जाएंगे, बट व्हाट अबाउट द एसेंशियल अमीनो एसिड्स? सो अगर आपके पास कोई नॉर्मल पर्सन आ रहा है तो आप उसको गाइड करेंगे कि आपको ये खाना है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड किस किस सोर्स में प्रेजेंट है, किस तरह के खाने में, किस फ्रूट में, किस ड्राई फ्रूट में, किस सब्जी में, किस दाल में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड हो सकता है आपके पास कल को कोई ऐसा केस आ जाए जो क्लिनिकल केस हो, जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी से हो रहा हो, ठीक है। तब आप क्या करेंगे? तब आपको उसके सिम्टम से पता चल जाएगा कि ओके, ही और शी इज हैविंग अ डेफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड डेफिशिएंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप उसको अमीनो एसिड तो नहीं देंगे, ठीक है, ना ही आपको उसका अमीनो एसिड दे सकते हैं लेके मार्केट से या कुछ, आपको तो डाइट से रिलेट करना है। सो यू हैव टू गाइड हिम और हर दैट काइंड ऑफ अ डाइट जो उसमें उस अमीनो एसिड में रिच होएगी, और जिसकी उस पर्टिकुलर पर्सन में और क्लिनिकल केस में डेफिशिएंसी है। आपको उस तरह का सोर्स बताना है उसको कि उसमें वो वाला पर्टिकुलर अमीनो एसिड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अगर आपको ही नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा? ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद करने हैं और करने चाहिए भी, बिकॉज ये आपके काम आएंगे। 20 काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। सो 20 काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स एंड एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल कैटेगरी प्लस देयर सोर्सेज, खासकर एसेंशियल अमीनो एसिड के सोर्सेज, क्योंकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के सोर्सेज तो देखो आपको मिल जाएंगे, पता चल जाएगा कि वो तो बॉडी में ही क्या कहते हैं, बॉडी में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, बन जाती है हमारी बॉडी में। वो कैपेबिलिटी है दैट दे कैन प्रोड्यूस दिस नॉन एसेंशियल, इसीलिए उनका नाम नॉन एसेंशियल दिया है कि वो डाइट से एसेंशियली नहीं हमें चाहिए, हमारी बॉडी कैन मेक दैट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एसेंशियल वाले डाइट से लेने और नॉन एसेंशियल लेने नहीं, इसलिए वो नॉन एसेंशियल हो गए, उनका शायद कोई फंक्शन नहीं है। नो, every amino acid in the 20 amino acid category, जो 20 amino acid है, चाहे उसमें essential non essential है, both kind of the amino acids equally important है। हर किसी अमीनो एसिड का फंक्शन है, यू कैन नॉट जस्ट मिस अ सिंगल अमीनो एसिड, ओके, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो एक सिंगल अमीनो एसिड चाहे नॉन एसेंशियल कैटेगरी से है चाहे किसी एसेंशियल कैटेगरी से है, अगर किसी भी प्रोटीन में एक अमीनो एसिड सीक्वेंस भी मिस हो जाता है ना, देन यू हैव टू बियर वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज वो कंजेनाइटल डिजीजेज होती हैं, जेनेटिक डिजीजेज होती हैं। अब आपको पता होगा एसेंशियल की थोड़ी सी नहीं होती हैं, क्योंकि एसेंशियल वाले अमीनो एसिड्स क्यों नहीं होती हैं, आप सोच के देखिए, क्योंकि एसेंशियल वाले को तो आप डाइट से ले सकते हो, ठीक है, बट जो नॉन एसेंशियल हैं वो भी शायद डाइट में प्रेजेंट होते हैं, बट वो हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस कर लेती है, वो दोनों कैटेगरीज में आ जाते हैं, ठीक है।
हमें वो डाइट से भी मिल जाते हैं और वो हमें हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन जो एसेंशियल हैं उनको हमारी बॉडी बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और वो हमें डाइट से ही लेने पड़ते हैं। ओके, सो अगर नॉन एसेंशियल में भी दिक्कत आ रही है जिसको बॉडी प्रोड्यूस करती है, हो सकता है आपकी बॉडी में कोई कोई क्लिनिकली सिम्टम्स या बाय बर्थ समटाइम्स वेरियस रीजंस, कोई ऑटोइम्यून डिजीज, एनी काइंड ऑफ द क्लिनिकल कंडीशन हो और कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो आपकी बॉडी नहीं बना पा रही है। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको वो डाइट में से लेना पड़ जाएगा, ठीक है। यू हैव टू सप्लाई विद योर डाइट, so you have to see whenever you start I mean planning for the diets for the patients or I mean in the society when you'll start working as a dietitian, so आपको वो याद करना पड़ेगा। so आपको ये सारी चीजें because हर देखो हर सब्जेक्ट में ना एक अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स होते हैं, कुछ आपको याद भी रखने पड़ते हैं। so you can make, I'll give you, हम वो जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, I'll give you the essential and non essential उनके सोर्सेज प्लस कैटेगरीज नेम 20 अमीनो एसिड्स के, वो आपको भेजूंगी मैं, ठीक है। आज ही जैसे ही क्लास फिनिश होती है देन आई विल बी गोइंग टू सेंड यू दिस दिस कैटेगरी ऑफ द नॉन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो मोर ओवर आपको ये याद रखना है कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन दे कैन प्रोवाइड दी 4 किलो कैलोरीज, ठीक है। और 4 किलो कैलोरी और जितने भी ग्राम्स आप प्रोटीन्स खाएंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो इंटू 4, तो आप उतनी किलो कैलोरीज अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं और आपका जो प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, जो भी आप खा रहे हैं, प्रोटीन्स खा रहे हैं, दे कैन प्रोड्यूस दैट अमाउंट ऑफ द किलो कैलोरीज। लाइक सेम होती हैं, सेम किलो कैलोरीज होती हैं जो किसकी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की। ओके, सो द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स दे कैन प्रोड्यूस द सिमिलर अमाउंट ऑफ द कैलोरीज 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज, बट जो लिपिड्स होते हैं उनमें थोड़ी ज्यादा होती हैं, डबल से भी ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर विद द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स। उसमें 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज आती हैं। लिपिड्स दे कैन गिव यू ओके शिवानी जी, आई कैन वी विल बी गोइंग टू ऐड यू। ओके, हाँ जी ठीक है, आई विल बी गोइंग टू सेंड यू द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, पहले तो कैटेगरीज, दूसरा नेम्स, तीसरा सोर्सेज, ठीक है। डाइटरी सोर्सेज obviously we have to talk about the diet only because we really need to talk about the diet and the modification of the diets and the energy patterns or whatever we really need. So uh, we have to talk about the diet only, okay, in this class because we are actually concerned about the dietitians and the nutritionists, okay. So एक ये तो basic concepts हो गए और एक होता है कि आपके और जो एक अमीनो एसिड होता है ना, जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक अमीनो एसिड, यस आप सेंड कर सकते हैं प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सो दैट एनीबडी कैन ज्वाइन फ्रॉम द व्हाट्सएप लिंक। ओके, सो एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड से, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि लॉन्ग चेन्स ऑफ द अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे ही हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे लिंकेजेस से जुड़ा होता है, एक लिंक से दूसरा जो बॉन्ड होता है ना एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड का, ठीक है, तो वो ऐसे लिंक से जुड़ा होता है जिसको हम पेप्टाइड लिंक कहते हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे, एक पेप्टाइड बॉन्ड से, फिर सेकंड वाला थर्ड से अगेन एक पेप्टाइड बॉन्ड। सो जितने अमीनो एसिड्स होंगे वो दो अमीनो एसिड दे वुड बी लाइक ज्वाइंड विद ईच अदर विद द पेप्टाइड बॉन्ड्स। ओके, अब जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन भी लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है, ऑल्दो इट वर्क्स एज ए हार्मोन सो इट इज अ प्रोटीन एंड सम ऑफ द एंजाइम्स जो हैं हमारी बॉडी में विच एक्चुअली हेल्प्स इन द डाइजेशन। ओके, आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर हम एक मील भी खाते हैं ना तो वो 1000 ईयर्स तक डाइजेस्ट नहीं होगी अगर स्पेसिफिक एंजाइम्स नहीं होंगे। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, सारे के सारे जो प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं ना वो प्रोटीन्स होते हैं, पर सारे के सारे प्रोटीन्स वो एंजाइम्स नहीं होते, ये आपने याद रखना है। मतलब हर क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं ना वो फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं और जो बाकी बचते हुए प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं जो हमारी बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं। देखो हेयर है, दैट इज ऑल्सो कैरेटिन प्रोटीन, स्किन में भी स्किन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, टीथ में भी, जॉइंट्स में भी, कोलेजन, आई मीन यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स and all the proteins they are made up of amino acids which are
made up which are divided into two categories, essential and the non-essential. Okay, there are 4 another categories also, but I think they are not in your syllabus because they are actually जो 20 amino acids है ना, they are actually further divided into 4 categories also, जिसके ऊपर polar charged होते हैं, non polar होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में सिर्फ 2 कैटेगरीज ऑफ द अमीनो है, मतलब 20 अमीनो एसिड्स ही हैं. वो एक अलग तरह की क्लासिफिकेशन से 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, बट अगर हम सिंपली इनको डिवाइड करें तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल कैटेगरी होती है, जो आपको याद रखनी है. ठीक है, तो वो वाली दूसरी कैटेगरी अगर किसी को चाहिए देन आई एम बी गोइंग टू सेंड यू. ओके, तो दोनों तरह की, बट आपको एसेंशियल नॉन एसेंशियल वाली तो करनी ही है, और आपको एनर्जी लेवल्स पता होने चाहिए, एनर्जी कैलोरीज किससे कितनी कैलोरीज मिलती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, सोर्सेज पता होने चाहिए. ठीक है, सो पेप्टाइड लिंकेजेस से जुड़े होते हैं एक से दूसरा अमीनो एसिड. ओके, यो दिस इज द इन योर बुक इज गिवन. ओके, 3.1 टेबल. सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन एंड हिस्टीडिन. ओके, सो और नॉन एसेंशियल में क्या है, एलानिन, एस्पैराजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, सिस्टाइन and glutamic acid, glutamine, glycine, hydroxyproline, hydroxylysine, proline, serine and tyrosine. All these amino acids are of non-essential category. This is written on your given in your book, page number 34, and the table number is 3.1. Okay, so anybody can see over there. Chapter name है third chapter है DNHE1 का, the macronutrients, proteins and fats. Okay, so these are. So अगर आप देखें यहाँ पे डाइट्स भी दी हुई हैं, जैसे फूड फ्रॉम द एनिमल ओरिजिन है, अगर फ्रेश फूड खाएंगे, गोट मीट है, फिश है, एग है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्रोटीन होता है इन ग्राम्स. लाइक अगर 100 ग्राम ऑफ गोट मीट खाते हैं तो 21 ग्राम के आसपास उसमें प्रोटीन्स होते हैं. फिश खाएंगे तो 20 के आसपास, एग खाएंगे तो 13 पॉइंट है. अगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो मिल्क अगर काओ का लेंगे उसमें 3.2 है. खोआ लेंगे आप जो थिक कंडेंस्ड मिल्क हो जाता है वो होता है 20 ग्राम. पनीर, कॉटेज चीज में 18 ग्राम्स होता है. अगर फूड आप देखेंगे प्लांट्स ओरिजिन से, नट्स एंड ऑयल सीड्स में, कैश्यू नट्स में 21 ग्राम्स होते हैं. मतलब आपको 100 ग्राम लेना है इन सबका. अगर कैश्यू नट्स आप 100 ग्राम खाते हैं देन यू विल बी गेटिंग दी 21 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स. ग्राउंड नट में है 25. पल्सेस होते हैं जो सोयाबीन, दैट वुड बी हैविंग 43 ग्राम. राजमा में 22 ग्राम. बंगाल ग्राम में, होल में बंगाल ग्राम अगर होल लेते हैं तो 13 ग्राम. ओके, सो ऑल दीज वैल्यूज दे आर एक्चुअली सोर्सेज, डिफरेंट काइंड ऑफ द सोर्सेज से ली हुई हैं. ठीक है, so you can actually have, if you want to have different kind of foods and you want to have, yes, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुआ है अभी, मैसेजेस में जाके लिंक्स में देख लीजिए कि वो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट्सएप में एक लिंक शेयर हुआ है. यस, तो अभी आप उस पर शेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो हम बात कर रहे थे प्रोटीन्स की. ठीक है, या ये डिफरेंट बुक्स में थोड़ी डिफरेंट लिखी होती हैं, बट आप ऑन एन एवरेज लिखो. बहुत ज्यादा पता क्या है, 2-4 पॉइंट्स का फर्क होता है. कहीं 20 लिखी होगी, 22-23 लिखी होगी, तो इट्स ओके, आप एवरेज ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर 20 भी लिखोगे, 24 भी लिखोगे, उसके आसपास ही होती हैं, सो उतना बरी करने की जरूरत नहीं है. बट एक्यूरेटली जो न्यूट्रिशन की वैल्यूज हैं, आई कैन शेयर विद दैट टू यू. ओके, मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ आपके साथ जो एक्यूरेट. गुरजीत मैम एज वेल, आप कुछ ऐसा चार्ट वगैरह कुछ शेयर कर सकते हैं कि राजमा में आपने जैसे बताया 22 ग्राम प्रोटीन होता है, या मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे करूंगी. व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं ये भेजने वाली हूँ. ठीक है, फिर से कैटेगरीज एंड ऑल. ठीक है, ओके, देख सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू शेयर. इस सोर्सेज भी मैं कर दूंगी आपको, डोंट वरी. और यहाँ पे तो 2-2, 3-3 सोर्सेज ही बताए हूँ. आई कैन गिव यू सो मेनी सोर्सेज, क्योंकि कोई थोड़ा सा थोड़ी ना खाएगा. आई मीन द पर्सन दे कैन हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड्स. ये 2-2, 3-3 नहीं है, देयर आर वैरायटी काइंड ऑफ फूड और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ होता है. आई विल गोइंग टू शेयर. मैम यहाँ पे जो तो करना है, अब राजमा हमारे में पास फंक्शंस हैं. ओके, सो द फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन जो आता है दैट इज ऑफ द बॉडी बिल्डिंग. ओके, सो बॉडी बिल्डिंग जो है हमारी बॉडी में, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मसल्स मेकिंग है, सबसे पहले जो प्रोटीन्स ही आते हैं. ठीक है, लिपिड्स डिपॉजिट होता है,
जो लिपिड जस्ट आपका वेट और एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होते हैं, दे कैन एक्चुअली लीड टू द ओबेसिटी, बट द प्रोटीन्स if they make the bodybuilding, if they are actually required by the bodybuilders, okay, but they are not actually they won't make you obese. अब दो तरह के फर्क को समझिए, हम दो एक ही चैप्टर में दो तरह के चीजें डिस्कस कर रहे हैं, लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स, बट वॉइस प्रॉपर्ली नहीं आ रही है क्या? मेरी तो वॉइस फुल है, बस ये फैन या एसी ऑन है, गर्मी है तो और तो कोई दिक्कत नहीं है. सो ओके, सो मैं ये बता रही थी कि आपको बॉडी बिल्डिंग देखो दोनों तरह के हैं. देखो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो वो डिपॉजिट नहीं होते हैं बॉडी में कहीं, ठीक है, दे वुड बी एक्चुअली स्टोर्ड इन अ लिवर. ओके, ग्लूकोज की फॉर्म में डिपॉजिट एंड प्रोडक्ट बनता है, एंड देन इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू दी आप वो कहते हैं कि इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो लिवर में स्टोर हो जाएगा और ज्यादा कहीं स्टोर नहीं होता है. आपने कभी नहीं देखा होगा कि बॉडी में yes, Surendra sir, I was actually continuing in the English only, but there are some of the students who actually force me to, or they actually compel me to speak in Hindi also, so I have to be bilingual both the time. Okay, so some persons they are comfortable in Hindi and some of the persons they are comfortable in English, so I'm just repeating. That's why I am repeating again and again the things. Sometimes once I repeat make understand in English, and then I have to make the other students to understand in Hindi only. I have to go likewise only, like this only. Okay, but if you want anything, if you don't want to want anything clear, so you can ask me again. I can explain in English also. Okay, and similarly for the Hindi speaking persons also, okay, I can explain in Hindi also. Don't worry. Okay, I'm here for both of the persons, both type of the person, both language speaking persons. Okay, I could be a bilingual, Hindi Punjabi में भी अगर है then also it's fine. Okay, so अगर हम देखें लिपिड्स की बात करें, फैट्स की बात करें और प्रोटीन्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात हमने कर ली, दे डोंट गेट स्टोर्ड इन द टिश्यूज, बट देखो प्रोटीन्स से मसल बनती हैं एंड जो लिपिड्स हैं वो उन मसल्स में स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं. सो दोनों तरह के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दे कंट्रीब्यूट इन मेकिंग द मसल्स. ओके, the lipids they get deposited in the muscles, but if we talk about the proteins, so they don't get deposit in the you can say that in the muscles, they make muscles. Okay, so both the अगर 1 gram आप प्रोटीन लोगे तो वो 4 किलो कैलोरीज कंट्रीब्यूट करेगा, एंड देन अगर लिपिड्स लोगे तो वो 9 किलो कैलोरीज. तो अगर हम सोचें कि वो सारे के सारे मसल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 2 gram of the things of both of the lipids and the proteins, they can actually give you the 13 kilocalories, both of the lipids and the proteins. Okay, so ये चीजें जो हैं वो आपकी बॉडी को कंट्रीब्यूट करती हैं. मसल मेकिंग में भी प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स दे गेट डिपॉजिटेड, बट बात इतनी है कि जो लिपिड्स होते हैं ना, दे कैन एक्चुअली लीड टू ओबेसिटी. ओके, सो दे कैन लीड टू ओबेसिटी, बट द प्रोटीन्स दे डोंट लीड टू द ओबेसिटी. ठीक है, दो चीजों में फर्क है. इफ यू हैव the proteins, so the persons you have who is taking more of the lipids, and the more of the calories or more of the energy would be generating by the lipids. But if you think about the proteins, then you can see that the proteins, they cannot actually contribute towards the obesity. The difference is there. Lipids, if they get deposited in the muscles, they can lead to the obesity, but the proteins, they make these muscles. Okay, that's why they build the body. So they are, but they don't contribute towards causing the obesity. The difference is there. Okay, and now if you see, since the beginning, our mothers, if they are literate too, but they also know that you have to take the proteins. If they don't know the name of the protein, but they give you the milk and addition in the milk and the dry fruits and the cottage cheese and the animal food, whatever the families they are eating. So they are actually always, they are providing us the proteins. Our mothers, they were, even if the mother is illiterate, then also she knows that I have to give, but she might be knowing somewhere that these are something energy building, and whenever my kid would be taking the milk properly, okay, and having the dry fruits and having the paneer kind of a thing or the cottage cheese, so he or she would be growing faster, because
And that's right, because that is the thing which could be contributing towards the bodybuilding. Okay, that could be contributing towards the bodybuilding, so that it is actually directly related with the development of the body and the growth. So the proteins, they are directly associated with the growth and the development of the body. Okay, so they are called the bodybuilders because they are actually, and moreover, the proteins are regulatory and the protective substances. Okay, so regulatory means they all are enzymes. I have already told you they are the enzymes. All enzymes are made up of amino acids. All the hormones, they are made of the amino acids. So hormones, they give the stimulus towards. Okay, so whenever your body is having more of the glucose, then the glucagon comes, and the insulin comes, that gets actually deposited, that helps in deposit or digestion of the more of the glucose which is present in the blood, so that it can save you from the getting diabetic. And if your glucose levels, they are going low, then the glucagon is one of the hormone which comes into the scene, and then it helps in the controlling the glycemic conditions. Okay, that will be glucagon would be taking care of your hypo conditions, and insulin would be taking care of our hyper conditions. So these kind of the hormones, they work along with the stimulus, and I've given you the example of the glucose. And amount of the glucose, if less, then it would be giving signal to the glucagon, and glucagon comes with the hypoglycemic conditions, and then it would give the stimulus to raise the glucose levels. Okay, so this is how the hormones work. But the hormones, they are made up of the amino acids and the enzymes, which helps in the digestion of the food, and they are known as the catalyst. I've already told you that if the enzymes are not there in our body, okay, which are made up of amino acids, if they are not there, so our food, if we eat food and the one time food intake would not be digested till the 1,000 years. Okay, but the enzymes, what they do, they actually enhance the rate of the digestion. Okay, digestion of that particular kind of a food. They save our time of digestion of a food, because the enzymes, they are working on the specific substrates. Okay, and every enzyme would be having the specific substrate, and if you like the specific substrate, so that would be working on a digestion of that particular substrate. तो enzymes के एक particular substrates होते हैं, उसी के साथ work करेगा, उसी को digestion करेगा, उसी को different kind of products में change करेगा. Okay, so the enzymes होते हैं, they work as a catalyst just to enhance the rate of the reaction of that particular metabolic processes. Okay, but they work with, or they act with the some particular kind of a substrate. एक enzyme बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा, the enzyme won't work till the time it doesn't get its own specific substrate. It won't work with another specific substrate, and the another specific substrate would be having some specific enzyme for the digestion. Okay, so the specificity of the enzymes is it. Okay, so the enzymes, they work with some specific substrate, so the specificity would be actually associated with the enzymes. Okay, for the digestion purposes. Okay, so every protein, every carbohydrate, every kind of a lipid, different kind of a fatty acids, different kind of a monosaccharide, disaccharides, or different kind of the carbohydrates, if you say, and different kind of the proteins also, they have a specific enzyme. So we have a many number of the enzymes in our body which actually work on the specific substrate. So they are known as the catalyst. Okay, because they work as a catalyst. Okay, so they work as a catalyst because they work with some particular specific substrate, and they convert it to food, and they become as such because they don't get utilized in our body. So they just react with the reactants. Okay, and they let them convert into the products. Okay, and then if they are converted into the products, मैम so आपका that वॉइस ब्रेक हो रहा है. nothing happens to that enzyme. Okay, I'm just telling you that enzymes are very specific for their substrates. Okay, and if one enzyme that work with its specific substrate
and it makes the E plus. Let's suppose that the enzyme is actually denoted with E symbol, and plus the substrate would be specific substrate would be denoted with specific substrate S. Okay, so E plus S is equal to, there is a complex formed that is called the ES. ठीक है, E plus S, ES is equal to, then what happened, then substrate would be converted into the P products plus E. So enzyme, which is represented by the E, it works with the substrate and it converts the substrate to product, but it comes as such. It doesn't utilized in any of the reaction. It just speeding up, it just helps in speeding up the reaction and comes as such outside. Okay, वो ऐसे ही स्पीड अप करेगा रिएक्शन को एंड सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा. ई और एस एक सबस्ट्रेट एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम एज सच बाहर आ जाएगा, क्योंकि एंजाइम को इस पूरे रिएक्शन में कुछ नहीं होता. एंजाइम का काम सिर्फ सबस्ट्रेट को पकड़ के आगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है, और वो उसका जो रेट है, उसकी जो स्पीड है रिएक्शन की, उसको बढ़ा देता है और उसको बढ़ा के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. और बाद में जो एंजाइम है वो एज सच बिना कुछ फर्क नहीं पड़ता एंजाइम को, वो ऐसे ही बाहर आ जाता है. एंड देन फिर वो एंजाइम ऐसे ही बाहर आ जाता है, फिर से अगेन दूसरे रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है. अगर और भी सबस्ट्रेट हमारे पास है देन वो उस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है. फिर वो अलग अलग सबस्ट्रेट को लेके जाएगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा एंड देन कम्स एज सच. फिर से और अगर और अमाउंट है आपके पास सबस्ट्रेट का, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो सबस्ट्रेट्स ही तो है ना वो सारे, ठीक है. whatever we eat that would be working as a substrate, that particular substrate is getting converted to the products by the enzyme, and the enzyme would be coming towards the forward reaction, and it would be getting converted, and it's helping in converting the substrate to the products, and it comes as such. Nothing happens to the enzyme, and the enzyme is again ready in the fresh form for working with the more of the substrate again. Okay, if more of the substrate is available, that particular enzyme will again work with that substrate and again convert into the product form and again comes back as such. Nothing happens to the enzyme. This is one of the functions of the enzymes. Okay, so enzymes are made up of the amino acids. Okay, so they are made up of the amino acids, so they are also proteins. But सारी तरह के प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते, बिकॉज सारी तरह के प्रोटीन्स फंक्शनल नहीं होते हैं, ठीक है. और सारी तरह के जो सारी तरह के जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो सारे प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन वो एंजाइम्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, लेकिन सारी तरह के प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है. क्योंकि प्रोटीन्स एंजाइम प्रोटीन्स हो सकते हैं पर सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं हो सकते, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स की एक फंक्शनल, जो आप कह सकते हैं जो फंक्शनैलिटी है वो आपकी उनकी हर्ट नहीं करते हैं, ठीक है. सो जो फंक्शनैलिटी है वो हर्ट नहीं होती है, ठीक है. फंक्शंस जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं और सारे के सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह वर्क नहीं कर सकते हैं, बट जो एंजाइम्स वर्क करते हैं, जो प्रोटीन्स वर्क करते हैं, उनको हम एंजाइम्स कहते हैं, वो फंक्शनल होते हैं, ठीक है. सो द बॉडी बिल्डिंग एंड द प्रोटीन्स आर रेगुलेटरी एंड द प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस. एंड समटाइम्स वही मैं कह रही हूँ कि रेगुलेटरी कैसे होते हैं, ये हमारे रेगुलेटरी का मैकेनिज्म किसे है, अगर ये हार्मोन्स की तरफ करते हैं. फंक्शंस तब होते हैं जब ये एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, ठीक है. और डेवलपमेंट ग्रोथ में जब ये मसल्स बनाते हैं. तो प्रोटीन्स के देखो कितने सारे फंक्शंस हैं, ठीक है. अब प्रोटीन एज ए करियर भी काम करते हैं. प्रोटीन एज ए करियर कैसे काम करते हैं, अगर अब एक सिंपल एग्जांपल ले लो, किसका, अमाइनो एसिड्स का, ठीक है. अमाइनो एसिड्स का लेंगे, प्रोटीन्स का लेंगे, बट अगर हम एक सिंपल करियर की बात करें, प्रोटीन का एक फंक्शन दिखाने की बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द करियर प्रोटीन, सो देन वी हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ द हीमोग्लोबिन. हमें हीमोग्लोबिन के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, जो ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन पार्ट है और जो हीम है वो आयरन है. जब आयरन के साथ ग्लोबिन लग जाता है ना, प्रोटीन लग जाता है आयरन के साथ, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि एक मेटेलिक आयन है, ठीक है, वो उसके साथ लग जाता है तो हीमोग्लोबिन बन जाता है. हीम मींस आयरन विच इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, या फिर उसको कोफैक्टर कहते हैं.
जो जाके ग्लोबिन जो एंजाइम है उसके ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसके साथ जाके लग जाता है। तो हीम प्लस ग्लोबिन मींस हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, दैट्स अ प्रोटीन ऑब्वियसली बॉन्डेड विद द मेटालिक आयन। ओके, सो द हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है। ब्लड में भी कितनी सारी सेल्स होती हैं, उसमें से जो आरबीसीज होती हैं रेड ब्लड सेल्स, उनमें ये होता है। और उसको रंग रेड किस लिए मिलता है? रेड कलर का कलर हीमोग्लोबिन का सॉरी ब्लड का इसीलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन प्रोवाइड्स our blood a red color. Okay, our blood is red just because of the presence of the hemoglobin, because heme is a protective prosthetic group and it's a metallic ion which is bonded to a globin which is a protein part. So one metallic ion bonded with the globin protein part, in combination, that would be called, it's a one kind of a protein, so it would be called as a hemoglobin, and that is present in our red blood cells which is called the erythrocytes also, RBCs also in a short form. So our blood is appearing the red in color just because of the presence of the hemoglobin. अब now, अब जब किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है ना, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज जो ऑक्सीजन है ना वो कैरी करने के लिए हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। हम खाना खाते हैं बट अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही जैसे ही हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में पूरा रहता है और हम सांस लेते हैं, हीमोग्लोबिन पूरा अमाउंट होगा हमारी बॉडी में जो नॉर्मल लिमिट्स होती हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन कैरी कर लेगा वो। तो ऑक्सीजन को कैरी करने पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, हमारी पूरी बॉडी में क्या घूमता है, ब्लड, और ब्लड में क्या होता है, रेड कलर का होता है ब्लड, तो हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन किसका करियर है? ऑक्सीजन का करियर। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन को इनहेल करके वो किससे बाइंड हो जाती है? हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन से जब बाइंड हो जाएगी तो वो पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में घूमती है। ठीक है, तो घूमेगी तो सारी सेल्स जो बॉडी की हैं उनको प्रोवाइड होती है। तो प्रोवाइड होती है तो हम, हमारी सारी सेल्स सांस लेती हैं। ये नहीं है कि हमारा ये वाला पोर्शन सांस लेता है, इट शुड गो टू होल ऑफ द सेल्स एंड ब्रेन तक जानी चाहिए हमारी ऑक्सीजन। अगर ब्रेन तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो हाइपोक्सिया, हमारी बॉडी फेंट हो जाती है। कई बार देखो ऑक्सीजन की कमी से भी लोग फेंट होते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारी बॉडी में हाइपोक्सिक कंडीशंस हो जाएंगी, और वो तब होती हैं जब लैक ऑफ हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो जब लैक ऑफ हीमोग्लोबिन होगा हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन कैरियर ही नहीं होगा। सो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का कैरियर है, वो उसको लेता है तो हम सांस लेते हैं। पहले वो पूरी बॉडी तक लेके जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, फिर उसको लेके ही हीमोग्लोबिन आता है, तब उसको उस कंडीशन में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब वो ऑक्सीजन कैरी करता है तो हम उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो जब वो वापस आएगा तो फिर से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाएगी, फिर से जब हम ऑक्सीजन से सांस लेंगे, और हम सारा दिन देखो कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार ऑक्सीजन लेते हैं, कितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कितनी बार ऑक्सीजन लेते हैं, कितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आप वेरी वेल इमेजिन कर सकते हैं हमारी ब्रीदिंग पैटर्न तो आएंगी। और हीमोग्लोबिन की कमी कहाँ से होती है? अगर हम प्रोटीन कम खाएंगे, स्पेसिफिक ग्लोबिन के सोर्सेज कम खाएंगे, और आयरन नहीं खाएंगे मिनरल्स में, तो आयरन नहीं होगा, ग्लोबिन नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, जिससे हमें सांस में दिक्कत आएगी। और हमारे ब्लड का जो लाल रंग है वो थोड़ा फीका होगा, पूरा रेड कलर नहीं होगा। ठीक है, so you have to be very careful that you have to take minerals also, you have to take the proteins also. ठीक है, and then you can have the physical activity so that आपकी पूरी बॉडी पे ऑक्सीजन, अगर आपके पास हीमोग्लोबिन भी ठीक तरह से है ना, और आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल मींस ज्यादातर आप बैठते हो, so you should not opt for the sedentary lifestyle, so that you should, if you have a proper amount of the hemoglobin, so you should go for a jogging, walking, and physically you should be very physically active so that you inhale a good amount of the oxygen. Okay, गुड अमाउंट ऑफ दी ऑक्सीजन जब आप एक्सेल करेंगे तो आपकी पूरी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, आपके पास अच्छा अमाउंट तो है ही है हीमोग्लोबिन का,
तो वो उसमें जाएगा और उतना ही ब्रेन को सप्लाई होएगी ऑक्सीजन की, उतनी ही पूरी बॉडी को सप्लाई होएगी। बट उसके लिए कैरियर का होना बहुत जरूरी है। कैरियर क्या है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का। ठीक है, सो आपकी डाइट में डोंट फॉरगेट टू टेक द हीमोग्लोबिन आयरन प्लस प्रोटीन्स एंड you should have a good amount of the exercise, so you breathe properly so that हर चीज ऑक्सीजन आपकी बॉडी के कोने कोने तक, ब्रेन को, सब जगह पहुंचे। सो नाउ अनदर फंक्शन, ये था प्रोटीन एज ए कैरियर। हमने प्रोटीन एज ए रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस पढ़ लिए हैं, हमने बॉडी बिल्डिंग पढ़ लिए हैं, अब प्रोटीन एज ए कैरियर पढ़ लिए हैं। अब प्रोटीन का एक और है एनर्जी गिविंग। So I've already told you that 1 gram of the protein can give you 4 kilocalories, जितनी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको पता है। सो नाउ यू कैन सी हाउ इम्पोर्टेंट द प्रोटीन्स आर, and along with the other dietary macromolecules and the micromolecules also, the proteins are very essential. Okay, so the digestion and absorption of the and utilization of the proteins, how could we actually see? So digestion proteins chiefly consist of the proteins and the small chain of the amino acids. Obviously we know that the 20 amino acids only, different kind of the 20 amino acids, they can make every kind of the proteins. Okay, so digestion of the proteins, अब क्या होगा कि जो proteins हैं जब उनकी ब्रेक डाउन होगी तो वो अपने इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आएंगे। तो हर प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है? बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था? सबसे छोटी यूनिट क्या था? दैट्स अ मोनोसेकेराइड। बट जो प्रोटीन्स हैं इनका सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? अमीनो एसिड्स। एवरी अमीनो एसिड्स आई मीन एवरी प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। सो अगर हम देखें, इफ वी टॉक अबाउट द एंजाइम्स, ओके, फॉर इन द डाइजेशन, so because the enzymes are proteins, okay, so but they work on a specific functions. Okay, so the protein digestion mainly occurs in the stomach and in the small intestine, and सबसे पहले जो enzymes हर तरह के प्रोटीन पे काम करता है ना, वो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। प्रोटियोलिटिक का मतलब क्या है? प्रोटीन्स, लिटिक मतलब लाइसिस करने वाला। सो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, क्या नाम है उसका? पेप्सिन, which is present in the gastric juices, in the liver and in the gallbladder. Okay, so even the pancreatic juices से भी आएगा। Then it would be going into the stomach whenever you eat the food. इनसे हमारे पास gastric juices release होंगे, जो associated organs होते हैं। pancreatic juices होंगे and then gastric juices होंगे, उनमें हमारे पास पेप्सिन आएगा and then पेप्सिन would be start working on those proteins. ठीक है, और उसको वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। सबसे पहले नहीं होता, देखो मैंने क्या बताया कि अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स इज देयर। तो जो पेप्सिन आएगा ना, पहले एक एक अमीनो एसिड का नहीं तोड़ेगा, वो कहीं बीच बीच में तोड़ देगा। सो लॉन्ग मतलब वेरी स्मॉल चेन्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स, स्मॉल चेन ऑफ द पेप्टाइड्स, इवन लेस देन दी 20 अमाइनो, क्योंकि 20 अमाइनो एसिड तो हमें प्रोटीन नाम लेना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रोटीन कोई ना कोई होगा। बट उससे 5, 7, 10 अमीनो एसिड की छोटी चेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी वुड बी हैविंग गुड अमाउंट ऑफ द पेप्टाइड्स। इन चेन्स को हम पेप्टाइड्स कहते हैं, स्मॉल। ठीक है, तो सबसे पहले एंजाइम्स क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे पार्टली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स टू द स्मॉलर अमीनो एसिड चेन्स, एंड देयर आर सेवरल प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कॉल्ड द प्रोटीएजेस in small intestine, so which are partly digested to the proteins and converted them into the even smaller amino acid chains. Okay, देखो पहले छोटी चेन्स, मतलब पहले एक बड़ा प्रोटीन था, उसमें काफी लंबी चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड थी, जो थोड़ी तोड़ के उसको हम लॉन्ग चेन पेप्टाइड्स बोलेंगे। फिर उनके और ऊपर छोटी चेन्स आएंगी। हो सकता है पहले 10, 12 अमाइनो एसिड्स की थी, अब हमारे पास कितनी आ जाएंगी? अब हमारे पास आ जाएंगी 5, 7 अमीनो एसिड्स की चेन्स। फिर उसके बाद और टूटेंगी तो वो 2, 3 की आ जाएंगी। फिर सिंगली पेप्टिडेजिस, फिर पेप्टियोलिटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, फिर आएंगे, पहले पेप्सिन काम कर रहा था, फिर पेप्टिडेजिस आएंगे, जो फिर इसको सारी लॉन्ग चेन और जो स्मॉल चेन एंड इवन स्मॉलर चेन्स को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? हमारे सिंगल अमाइनो एसिड्स में। ओके, सो सिंगल अमाइनो एसिड्स में ही आ जाएगा फिर हमारे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर। तो अब हमारे पास सिंगल अमाइनो एसिड्स में आ जाएंगे एंड देन फिर क्या होगा कि ये सारी चीजें ना जो सिंगल यूनिट्स में आ जाएंगी, ये सारा स्टमक में हो जाएगा एंड देन आफ्टर द स्टमक इट वुड बी गोइंग इनटू द इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। सो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन से एब्जॉर्प्शन होके फिर ये सारे आ जाएंगे किसमें?
that would be converted into the glucose only. Okay, so everything what we eat, that would be converted into the glucose, and then it would be actually absorbed from the intestinal wall, and then it comes into the blood, okay, in the form of the glucose. So सारे के सारे enzymes जो होते हैं वो सीधा सीधा digestion में, and some of the amino acids होते हैं ना, वो digestion में फिर cells में, और देखो हम ये कहते हैं कि whatever we eat that would be actually converted into the glucose only. ठीक है, जब हम ग्लूकोज की बात करेंगे, जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्लूकोज से क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके फिर ब्लड में आके फिर सेल्स में एंटर करेगा. बट आपको मैं अमाइनो एसिड्स की ब्यूटी बताती हूँ. सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ऐसे होते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस में भी नहीं जाते और वो सिट्रिक एसिड साइकिल में ही सीधा एंटर करते हैं. सीधा का सीधा, देखो कितनी एनर्जी बच जाती है कि ग्लाइकोलाइसिस में जाने की बजाय सीधा का सीधा सिट्रिक एसिड साइकिल में चले जाते हैं. सो दे आर फास्ट, क्या कहते हैं उसको, दे आर दी फास्ट एनर्जी प्रोड्यूसिंग एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग अमाइनो एसिड्स भी होते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है, सो और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रोटीन्स जो एनिमल ओरिजिन से भी होते हैं एंड प्लांट प्रोटीन से भी होते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज यू वांट टू हैव इट. So now we are shifting to, now with this we have finished with the proteins. Now we are more going to discuss about the fats. So similarly, as I have already told you, the fats जो होते हैं या lipids जो होते हैं ना, वो basically fatty acids and glycerol के बने होते हैं. जो glycerol होता है ना, वो three कार्बन स्ट्रक्चर होता है. उसके आगे OH ग्रुप लगे होते हैं, और OH का H जाएगा, दूसरे का भी H जाएगा, तीसरे का भी H जाएगा, तो वहां 3 फैटी एसिड्स आके लग जाएंगे. तभी तो हम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं, जिसको हम TGs कहते हैं. हमारी बॉडी में व्हेनेवर यू गो फॉर दी क्या कहते हैं उसको, लिपिड एनालिसिस, लिपिड प्रोफाइल करवाने जाओगे, तो उसमें वेरी लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स करवाने की बजाय हमें TGs भी करवाने पड़ते हैं, हमें कोलेस्ट्रॉल भी करवाना पड़ता है. ठीक है, तो TGs क्या होते हैं, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड्स. बट जो लिपिड्स होते हैं उनकी जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है, फैटी एसिड्स. ओके, सो तो डिफरेंट काइंड ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं. सैचुरेटेड भी होते हैं एंड अनसैचुरेटेड होते हैं. अब सैचुरेटेड का क्या होता है रोल? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जो जम जाते हैं. ठीक है, जो हमारी बॉडी में जम जाते हैं. ठीक है, तो हमारी बॉडी में जब जमेंगे तो वो सैचुरेट, और उसमें सैचुरेटेड का हमारे पास कंटेंट आता कहाँ से है, सैचुरेटेड वाले का हमारे पास कंटेंट आता कहाँ से है कि लॉन्ग चेन ऑफ, सिमिलरली जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बंधे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं. एंड देन प्रोटीन्स में व्हाट हैपेंस, अ डिफरेंट काइंड ऑफ द अमीनो एसिड्स दे आर बॉन्डेड टुगेदर विद द पेप्टाइड बॉन्ड्स. लाइकवाइज द लिपिड्स और फैट्स की अगर हम बात करें, सो द डिफरेंट काइंड ऑफ द फैटी एसिड्स दे आर जॉइंड बाय the bonds. Okay, so fatty acids different kind of bonds के साथ जुड़े होते हैं, and different fatty acids आगे से आगे long chains में जुड़े होते हैं. but एक fatty acid को हम unsaturated and saturated amount में हम कह सकते हैं कि ये saturated है और ये saturated है. ठीक है, तो saturated में क्या होता है कि different kind of the fatty acids है, उसमें different kind of long chain of the carbon acid, क्योंकि ये fatty acid ना ज़्यादा long chain होते हैं, तभी तो ज़्यादा energy देते हैं. ठीक है, long chains of carbon के बने होते हैं. बट एक कार्बन क्या होता है, उसके 4 बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर सकता है. लेकिन जब एक कार्बन बॉन्ड दूसरे कार्बन बॉन्ड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट हो, डबल से ज्वाइंट हो ज्यादातर होता है, डबल से ट्रिपल कम होते हैं, बट डबल से जब ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड जहाँ ज्यादा होंगे तो उसमें क्या होगी, वो अनसैचुरेटेड होती है. जिसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे ना, तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी में सिंगल बॉन्डेड होंगे तो वो क्या होंगे, सैचुरेटेड वन. जो डबल बॉन्ड होंगे तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएंगे. अब मैं आपको बात बताती हूँ, अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो जो सैचुरेटेड होंगे एंड अनसैचुरेटेड होंगे, तो जो सैचुरेट होंगे वो होते हैं कौन से वाले, देसी घी हो गया, डालडा घी होता था, वो सैचुरेट हो जाते थे. ठीक है, उनका एक नुकसान था कि जब भी हम ज्यादा खाते थे घी, देखो पुराने टाइम में क्या था, सारे सैचुरेटेड फैट ही खाते थे, बट दे हैव अ वेरी फिजिकल एक्टिविटी, they have to work, okay, physically long in the fields में काम करना, धूप में काम करना, पसीने भी आते थे, तो उनको जो भी वो डिपॉजिट खाते थे ना,
सो दैट वुड बी डाइजेस्टेड, वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता था और पसीने में निकल जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि हमारा लाइफ स्टाइल जो है सेडेंटरी हो गया, वी एक्चुअली यूजुअली सिट एंड वर्क इन द ऑफिसेज आल्सो, मॉर्निंग इवनिंग सैर कर लेंगे, वो उससे वो बात नहीं बनती है, बट इट इंटायरली डिपेंड्स कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट यू कंज्यूम, ओके, या तो लिमिटेड कंज्यूम कीजिए। अब अगर सैचुरेटेड फैट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो फैट कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर अमाउंट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का है, सो दैट इज गोइंग टू सैचुरेट, जम जाएगा वो। तो उसमें क्या होगा कि आपके ब्लड में जब एब्जॉर्ब होंगी ये फैटी एसिड्स, तो ये जाके ब्लड में जाएंगे, तो ब्लड में, क्योंकि हर कोई खाना जब आप खाते हैं सो दैट वुड बी गोइंग इनटू द ब्लड, तो जब आप ब्लड में जाएगा तो ब्लड में जाने के बाद होगा क्या, ब्लड में जाने के बाद वो डिफरेंट आर्टरीज में जब घूमेगा, तो जो जितना फैट होता है ना, वो आर्टरीज जो हार्ट को जाती हैं उनके ऊपर वो डिपॉजिट हो जाता है। तो जो वो इतना बड़ा होल था ना आर्टरी का बीच में से निकलने का जो पैसेज था, ठीक है, उसके ऊपर जम जम के ना, वो अगर इतना बड़ा था तो और स्क्वीज हो जाएगा और स्क्वीज होता रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर जमना शुरू हो गया है लिपिड्स, ओके। सो तो फिर उसमें नैरोइंग पैसेज, अब ब्लड ने जितना फ्लो करना है उतना करना ही है, ठीक है। तो जब नैरोइंग होगी पैसेज, तो वो जब फ्लो करेगा तो आपकी आर्टरीज पे प्रेशर क्रिएट होएगा, जब ब्लड इसमें से नैरो में से कर रहा है फ्लो, तो उसमें प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आर्टरी जो है वो नैरो हो गई है, उसका जो पैसेज है वो कम हो गया है, बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ द सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड लिपिड्स। सो उसमें से जब वो निकलेगा तो उसका प्रेशर पड़ेगा, एक्सर्ट करेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसके आर्टरीज के ऊपर, ठीक है। जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो वो जाएगा अंदर, और फिर कई बार क्या होता है कि प्रेशर इतना एक्सर्ट, प्रेशर ज्यादा भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हाई, देखो फर्क समझो, जब थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, मतलब आर्टरीज थोड़ी सी कम नैरो हुई है, प्रेशर थोड़ा ही ज्यादा हुआ, थोड़ा ही हुआ, तो उससे क्या होगा, सो थोड़ा ही होगा तो ब्लड जाता रहेगा। लेकिन जब प्रेशर ज्यादा होगा, इसका मतलब नैरोइंग ऑफ आर्टरी हो चुकी हुई है, ज्यादा हो चुकी हुई है, और जितना ज्यादा बीपी हाई होता रहेगा तो वो इस वॉल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा तो समटाइम्स इंजरी हो जाती है, जो साइड की वॉल्स हैं, सेल्स हैं, ओके, सो सेल्स हैं, वो उसके ऊपर से ब्लड आ जाएगा, ठीक है, ब्लड आएगा तो उसका एक क्लॉट बन जाएगा ब्लड में, when the clot would be there, तो वो ब्लड में घूमता रहेगा क्लॉट, ठीक है। जब क्लॉट होगा एंड देन क्लॉट वुड बी एक्चुअली कहीं पे अगर ज्यादा आर्टरी नैरो हो गई तो उसमें वो आई मीन दैट वुड बी लाइक फंस जाएगा वो वहां, ठीक है, एंड दैट वो उस जो ब्लड का पैसेज है उसको वो ब्लॉक कर देगा, क्योंकि क्लॉट फंस गया बीच में। अब क्लॉट फंस जाएगा तो आपकी एंजाइना पेन्स होनी शुरू हो जाती है, हार्ट में पेन, क्योंकि हार्ट को ब्लड चाहिए, अब रास्ते में क्या है, क्लॉट फंस गया, ब्लड आ नहीं रहा है, तो हार्ट जोर जोर से पंप करेगा, एंड देन इट वुड बी लिटिल बिट नहीं, थोड़ी सी पेन होगी, इस साइड को जाएगी, रेडिएट होगी, तो दे आर द सिम्टम्स के फिंगर्स तक जाएगी, ठीक है। एंड देन दैट क्लॉट वुड बी द क्लॉट वुड बी लाइक समटाइम्स क्या होता है कि इतनी एग्जैजरेट हो जाती है चीजें, अगर टाइमली ना संभाला जाए तो वो ब्लास्ट ही हो जाता है, और वहां पे क्लॉट और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाएगा कि बिल्कुल ही क्लैप्स कर जाएगा, क्योंकि ब्लड का पैसेज बिल्कुल रुक जाएगा, हार्ट तक पहुंचेगा नहीं, हार्ट भी थोड़ी देर, कितनी देर वेट कर सकता है, अगर टाइमली चीजें नहीं पहुंचेंगी, टाइमली संभाला नहीं जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाता है, एंड इट कुड बी अ फेटल मींस पर्सन की डेथ हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड द अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, अथियर मींस की क्लॉट, एंड अथेरोस्क्लेरोसिस होता है जब क्लॉट फंस जाता है, and then it would lead to the myocardial infarction। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हम हार्ट अटैक को कहते हैं, जब बिल्कुल मायोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं, एंड अगर टाइमली ना संभाला जाए तो वो बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है, हार्ट अटैक हो गया, दिस इज क्वाइट कॉमन, आपको मैकेनिज्म शायद नहीं पता था, बट इट वुड बी। सो टाइमली संभालना, पेन हो रही है, और बीपी को कंट्रोल रखना, अगर बीपी ज्यादा हाई जा रहा है, सो दैट मींस द बीपी शुड कम लो, इमीडिएटली आपको बीपी को लो करना है, ठीक है, तो आपको बीपी हाई से बचना है, क्योंकि ये तो वो होता है सैचुरेटेड फैट से। लेकिन अगर आप घी तेल खाते भी हैं, सैचुरेटेड फैट खाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड यू हैव टू बी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि सैचुरेटेड फैट जो है वो डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाए और कहीं भी डिपॉजिट ना हो।
सो अब इसका ना काफी साल पहले, अब मैं आपको बताती हूँ, इसका एक सोल्यूशन निकाला था डॉक्टर ने, जब हार्ट अटैक बहुत ज्यादा होने लग गए थे, क्योंकि हमारा जो पहले से चलता आ रहा था सारा फैट्स खाने का तरीका, गांव में लोग रहते थे, एग्रीकल्चरल लैंड्स पे काम करते थे, सो उनका जो था काम करने का तरीका वो फिजिकल ही था, पसीने आते थे और सैचुरेटेड फैट खाते थे, वो डिपॉजिट हो जाता था, तो वैसे मतलब डिपॉजिट नहीं होता था, तो वो उनको हार्ट अटैक जैसी चीज नहीं थी। पर जैसे ही लोगों अर्बनाइजेशन होनी शुरू हुई, लोग विलेज से एग्रीकल्चर लैंड्स को छोड़ के दे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द आई मीन द अर्बनाइजेशन होने की, टुवर्ड्स सिटीज की तरफ आना शुरू हुए, एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग इन दी ऑफिसेज, ज्यादा सीडेंट्री होना शुरू हो गया, सिटिंग से ज्यादा हो गया, दूसरा स्ट्रेस लेवल होने शुरू हो गए, उससे बीपी बढ़ना शुरू हो गया, पर घी तेल क्योंकि वही खा रहे थे सैचुरेटेड वाला, इसीलिए हार्ट अटैक्स की जो रेशो थी वो बहुत बढ़नी शुरू हो गई थी, बहुत लोगों को हार्ट अटैक जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया था। ठीक है, सो होता क्या है अब, उसके बाद होता क्या है कि साइंटिस्ट ने फिर ऐसा किया कि इन्होंने अनसैचुरेशन क्रिएट की। अनसैचुरेशन में क्या था, जो कार्बन बॉन्ड होते हैं फैटी एसिड्स में, उनमें काफी ज्यादा डबल बॉन्ड आने शुरू हो गए। तो जब अनसैचुरेशन हो गई ना, काफी ज्यादा डबल बॉन्ड, ज्यादा मतलब मेनी, मेनी मीन्स पॉली, सो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ गए मार्केट में। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली मीन्स मेनी, फैटी एसिड्स में अनसैचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड्स। इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस की जिससे जो फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स क्रिएट किए, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा जब हो गए डबल बॉन्ड्स क्रिएट किए, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतना ही अनसैचुरेटेड होगा फैटी एसिड, सो उतना ही वो सैचुरेट नहीं होगा। ठीक है, तो उनको कहते हैं पूफास। आपने रिफाइंड ऑयल्स देखते हो, ये सारे पूफा होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, सो ये जब पूफास होते हैं ना, ये डिपॉजिट नहीं होते, तो आप जितना भी इसको खाते हो तो वो डिपॉजिट होते ही नहीं। ठीक है, तो आर्टरीज पे डिपॉजिट होंगे ही नहीं, नैरोइंग ऑफ आर्टरी होगी ही नहीं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर आराम से फ्लो कर रहा है, ब्लड अपने नॉर्मल प्रेशर के साथ आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, तो इससे हार्ट अटैक्स बहुत कम हो गए थे। इसको सेव करेंगे, इसीलिए कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल्स खाओ। ठीक है, रिफाइंड ऑयल फिर बड़ी सारी प्रॉपर्टीज के साथ आने लग गए, फिर एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें फोर्टिफिकेशन के साथ आने लग गए। ठीक है, राइस ब्रान ऑयल्स आने लग गए, फिर अब काफी साल, लेकिन हर चीज की ना एक लिमिट होती है। हमने क्या किया कि व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द पूफास, बट वी हैवंट चेंज्ड आवर हैबिट्स, वी कीप ऑन हैविंग दोज फ्राइड ऑयल्स, सब कुछ फ्राइड छोड़ा ही नहीं हमने खाना, खाते रहे, लेकिन और ये है कि चलो जी अब इससे हार्ट अटैक नहीं होगा, हम तो रिफाइंड ऑयल खाते हैं, जितना मर्जी तलो और खाओ। लेकिन होता क्या, अब काफी सालों बाद हुआ क्या, पहले तो हार्ट अटैक से बचने के लिए वी हैव मेड द साइंटिस्ट दे हैव मेड द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब क्या हुआ कि इतना 20-25 सालों में हम, क्योंकि 20-25 साल हो ही गए हैं, तो अब क्या हुआ कि अब जॉइंट पेन्स, डिस्क प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई लोगों को, बिकॉज जो डेपोजिशन से ग्रीजिंग ऑफ जॉइंट पेन्स होती है वो कम हो गई, क्योंकि रिफाइंड ऑयल्स जमते नहीं, और जो डिस्क में माइलिन शीट होती है उसकी डिजेनरेशन होनी शुरू हो गई, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं है, along with proteins, along with other minerals and vitamins, antioxidants। ठीक है, तो वो माइलिन, इसीलिए डिस्क प्रॉब्लम बढ़नी शुरू होगी, जॉइंट पेन्स बढ़नी शुरू होगी, नी जॉइंट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब तभी तो इतना नी रिप्लेसमेंट और बीच में माइलिन शीथ और डिस्क प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए कितने ऑपरेशंस के अलावा कोई रह ही नहीं गया, क्योंकि बीच में से खत्म ही हो गई है ग्रीजिंग। ठीक है, अब ये नुकसान हुआ है, लेकिन ये काफी साल लगते हैं हर चीज का पता चलने में कि इसके फायदे भी हुए हार्ट अटैक में, बट इसके अदर बॉडी पार्ट्स में अब नुकसान भी होने शुरू हो गए। और एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, जॉइंट पेन्स एंड ये तो हो ही गया चलो, लेकिन एक और सबसे बड़ा नुकसान होना शुरू हो कि कैंसर ऑन राइज हो गया। द कैंसर की जो डिजीज थी दैट वुड बी गोइंग ऑन राइज, एवरी काइंड ऑफ द एवरी टाइप ऑफ द कैंसर एंड एवरी कैंसर ऑफ एवरी ऑर्गन, चाहे किसी भी ऑर्गन का आप कैंसर ले लो, वो बढ़ना शुरू हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ द रिफाइंड ऑयल। अदर थिंग्स भी हैं, ड्रग्स भी हैं, रेडिएशंस भी हैं, बट एक जो रिफाइंड ऑयल के यूसेज से, पूफा के यूसेज से भी कैंसर इंक्रीज हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि हम खाना बंद नहीं करते हैं, रिफाइंड ऑयल खाना है, कम अमाउंट में खाना है, फिर भी सैर एंड फिजिकल एक्टिविटी तो उसके साथ भी हमें रखनी चाहिए।
लेकिन एक मैं और बताती हूँ आपको कि जैसे ही हम अब जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। उसकी फर्दर एक तो सैचुरेटेड का पता चल गया ना, जो हार्ट अटैक से रिलेटेड मैंने आपको समझाया। सो नाउ वी आर मोर कंसंट्रेटिंग अपॉन द पूफा रिफाइंड ऑयल्स। ठीक है, तो पूफा क्या होते हैं? वो अनसैचुरेटेड वाले थे, जिनमें अनसैचुरेटेड बहुत होते हैं। अब अनसैचुरेटेड वाले भी ना आगे फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आते हैं एक सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब वो हम कार्बन बॉन्ड्स की बात करते हैं ना, तो कार्बन बॉन्ड्स होते हैं ना, जब उसके H आयंस हाइड्रोजन आयंस लगे होते हैं, जब वो दोनों एक ही साइड पे हो ना, तो उसको हम कहते हैं सिस फॉर्म में है अनसैचुरेटेड वाला। ठीक है, जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे होते हैं सेम साइड पे, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? सिस फॉर्म में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। बट एक क्या होता है कि अगर एक डबल बॉन्ड सी है, एक का हाइड्रोजन इधर लग जाए, दूसरे का हाइड्रोजन ऑपोजिट पोजीशन पे लग जाए, तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ट्रांस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। दे आर वेरी डेंजरस, और जब हम इनको खाते हैं, अब होता क्या है? सिस से ट्रांस में बन कैसे जाते हैं? जब आप फ्राई करते हो ना, फ्राई करते हो आप रिफाइंड ऑयल में, आप कढ़ाई में डाला, ऑयल डाला, क्योंकि बीच में पकौड़े तले, ठीक है, खा लिए, उस कढ़ाई को फिर से ढक दिया गैस पे, ओके। एंड देन आफ्टर सेकेंड डे क्या होता है? कढ़ाई तो तेल भरी हुई है, एंड देन the bowl with the that polyunsaturated fatty acid that was lying on that gas burner, you have taken one time you have actually fried that pakoras and other things also, and then you had again you use that oil for again the frying next day, or maybe the same day in the morning and then in the evening, and sometimes that oil remains in that bowl or the that container which is lying on your gas burner, and again in the morning you start taking frying in that oil में same। हमारे घरों में ना, इंडियंस में it happens, it's actually this similar kind of a thing, okay। तो उसको फिर से यूज कर लिया, एंड आफ्टरवर्ड जो थोड़ा सा भी बच जाता है उसकी फिर हम सब्जी और ऑयल में तड़का लगाने के लिए, एंड देन फॉर गार्निशिंग आल्सो वी आर आल्सो using that oil। But just see that keep on frying the pufas, keep on frying again and again, frying in that particular oil converts that polyunsaturated fatty acid, cis fatty acid, to transforms. So keep on frying of that same amount of that cis polyunsaturated fatty acids gets converted into the trans fatty acids, okay। So keep on frying is very dangerous। So if you want to eat that fried things in that oil, so take little bit of that oil, keep fry into that, and afterward don't use that oil। Even if you want to use that once only again, then again don't use that। So either you can stop eating fried, or stop keep on frying, you can use just a little bit of the oil which is required for the frying। So that's why I endorse, and that's why I just make you people aware that stop taking the things from the outside fried, because even if you go to the big shops of the halwais and the sweet vendors, okay, any big brand, but they won't allow you to go to their kitchens, okay। And who will make sure that they are not using the yesterday's oil, because they have a big bowls and big containers in which they fry the samosas and other pakoras, other things also, and in the same, and for whole of the day they keep on frying in that only। Even if you go to the Gopals, even if you go to the Baba Dairy, even if you name any of the big sweet shop, okay। So how dangerous that trans fat could be, okay। So just try to understand all these things. If you want to take the fried things, if you want to have, so make at homes, and just avoid keep on frying that. Take the little bit of the oil, fry in that, and have that, they consume that, and afterward though don't consume that oil again and again, and don't keep on frying in that oil again and again, okay। So just stop having that trans fat, okay। So and in the market also, some of the things
some of the packets, they also mention that how much trans fat is there, how much cis fat is there, how many polyunsaturated fatty acids are there. Now, one more thing. Now, till the time you have understood, okay? So the now one more thing is there. Now the scientists, they come to know about the cancer too. First, the saturated fatty acids था, तो heart attack को रोका गया, and then heart attack would be stopped by the polyunsaturated. After the polyunsaturated, cis fat would be getting converted into the trans fat for the after keep on frying, and after the keep on frying, the cancer was on the rise. Okay. So now the scientists, they have worked on the PUF rather than the PUFA. They have worked on the MUFAs also. Now in the market, the MUFAs also present are available also. MUFA means only one unsaturated bond is there. मतलब one double bond or triple bond is present in whole of the fatty acid. अब क्या है, जो पूफा था ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अब वो मूफा आ गया, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ गया. पॉली अनसैचुरेटेड में थे काफी ज्यादा डबल बॉन्ड होते थे, जो उतने ही सिस होंगे और जितनी बार फ्राई करोगे वो उतने ही ट्रांस में बदलेंगे. तो जितना ज्यादा आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फ्राई करेंगे और कीप ऑन फ्राइंग करेंगे, तो उतना ही ज्यादा वो ट्रांस फैटी एसिड्स की अमाउंट बढ़ती जाती है, और उतना ही वो कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग हो जाते हैं, कैंसर होता है जिनसे. लेकिन अगर अब वो रिप्लेस हो गए हैं मुफा से, मतलब कि मोनो अनसैचुरेटेड, पूरे फैटी एसिड में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा. अब आप उसको जितना मर्जी फ्राई करो तो एक ही ट्रांस फैट बनेगा, एक ही बॉन्ड पे ट्रांस बनेगा, तो बहुत ज्यादा ट्रांस नहीं बनेगा. सो अब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, और आपको फिर भी आपको ज्यादा फ्राइंग खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्राइंग खाना सेहत के लिए हमेशा से खराबी करता है, हमेशा से ही प्रॉब्लम्स आती हैं इफ यू कीप ऑन ईटिंग फ्राइंग. ओके, so I think I have made this clear about the fatty acid and the polyunsaturated fatty acids. Okay, so these are the basic units, and इसमें भी आपको fatty acids essential and non essential. अब अगर हम fatty acid के functions पे बात करें, so they are the big source of the energy, because as compared with the carbohydrates, as compared with the proteins, they are the sources of the energy, because 1 gram would be giving you the 9 kilocalories. Okay, so satiety value भी बड़ी होती है. आपको प्रोटीन खा के इतनी सैटिस्फाइड वैल्यू, मतलब भरा भरा सैचुरेशन, पेट जल्दी नहीं भरता है प्रोटीन से, जल्दी नहीं भरता कार्बोहाइड्रेट से, जितना लिपिड से भरता है, क्योंकि आप हमेशा फ्राइड खाएंगे, घी तेल ज्यादा लगा के खाएंगे, तो आपको हमेशा भरा भरा और अच्छी स्टमक में सैटिस्फाइड की फीलिंग आएगी. ठीक है. इंसुलेशन एंड द पैडिंग. अब हमारे मैडम आप आगे बढ़े उससे पहले, ऑलिव ऑयल हम 2-3 बार अगर फ्राई और में यूज करें तो चलता है? नहीं, कोई भी नहीं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ओके, थैंक यू. इसमें भी सेम काइंड ऑफ बॉन्ड्स हैं, क्योंकि वो भी नहीं होता है, सो सेम है. बट हाँ, उसमें एंटीऑक्सीडेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए वो थोड़ा सेविंग साइड हो जाता है, क्योंकि जिस चीज से कैंसर हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसी में एंटीऑक्सीडेंट है. एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, जो कैंसर कॉजिंग फ्री रेडिकल्स होंगे, एंटीऑक्सीडेंट उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसलिए ऑलिव ऑयल थोड़ा सा कम नुकसानदेह माना जाता है. लेकिन कीप ऑन फ्राइंग के लिए वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप कीप ऑन फ्राइंग करेंगे, बहुत ज्यादा फ्राई करके खाते हैं, तो उसके जो एंटीऑक्सीडेंट है वो भी तो खराब होते हैं ना, उसमें जो अच्छे अमाउंट्स है वो भी खराब होते हैं हीट से. अगर कुछ प्रोटीन्स या कुछ भी एसेंशियल पड़ा है, देन आल्सो दैट वुड आल्सो बी गोइंग टू वैनिश. एंड देन इंसुलेशन एंड द पैडिंग. अब हमें पता ही है कि जितना फैट खाएंगे उतनी ओबेसिटी बढ़ेगी, उतना ही हमारी जो बॉडी के एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होगा. ठीक है. तो उतनी ही हमारी इंसुलेशन, मतलब इंसुलेशन होती है हमारी बॉडी की, कुछ कुशन टाइप हो जाती है, और हमारी बॉडी में लेयरिंग ऑफ फैट्स हो जाती हैं, तो बोन्स एंड अदर थिंग्स दे एक्चुअली गेट सेव्ड. ठीक है. एंड सोर्सेज ऑफ द एसेंशियल फैटी एसिड्स. अब क्या है, अब हमारी बॉडी में एसेंशियल नॉन एसेंशियल फैट, जैसे कि अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, ऐसे नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं. तो जितने भी हमारी बॉडी में फैट्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं, उसमें से हमें एसेंशियल वाले भी लेने होते हैं. ठीक है. वो बहुत जरूरी भी हैं. कैरियर ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन्स. अब हमारी बॉडी में फैट्स का होना बहुत जरूरी भी है. जरूरी किस लिए है, क्योंकि कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, ठीक है,
कुछ ऐसे करियर हैं जो लिपिडिक जो हम, क्योंकि लिपिड्स हमारी जो सेल है ना, उसकी मेम्ब्रेन होती है ना, उसका एक बहुत हिस्सा है। फॉस्फोलिपिड्स, पिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी हमारी मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन में आते हैं। अगर जीरो कर देंगे तो हमारी मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन ही खराब हो जाएगी, तो कुछ भी सेल के अंदर एंटर करेगा, कुछ भी बाहर जाएगा। और ये कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारी मल्टीविटामिन, जो विटामिन हैं वो डिसॉल्व होते हैं, जैसे ए, डी, ई एंड के। अगर लिपिड नहीं होंगे तो ये वाले विटामिन डिसॉल्व ही नहीं होंगे। के हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए चाहिए होता है, ई हमें चाहिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ठीक है। डी भी हमें चाहिए, विटामिन डी हमारी बोन्स एंड उसके लिए। अगर लिपिड्स नहीं है तो ये डिसॉल्व भी नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे लिमिटेड अमाउंट ऑफ द फैट्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसका भी बहुत हेल्थ एंड डिजीज से, जब तक वो तो नॉर्मल रहेगा तब तक तो उसका अमाउंट ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाएगा तब वो हार्ट अटैक को करेगा, ठीक है। सो नाउ, क्योंकि हमारी बॉडी में क्योंकि हमने अब हमने 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म किए। लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट, नाउ वी हैव फिनिश्ड विद द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स आल्सो। नाउ आई वाज टेलिंग यू कि जो प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, दे आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द डेपोजिशन ऑफ द फॉर द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन्स। अब हमारे पास 2 तरह के विटामिन्स होते हैं। अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं विटामिन्स। 2 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं मिनरल्स एंड द विटामिन्स। हम पहले विटामिन्स डिस्कस करने लगे हैं। तो विटामिन्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आते हैं ए, डी, ई एंड के, ठीक है। विटामिन ए जो आइज के लिए जरूरी होता है वो भी फैट सॉल्युबल होता है। डी जो हमारी बोन्स के लिए जरूरी होता है, टीथ के लिए जरूरी होता है, बोन्स के लिए ज्यादा, वो भी फैट सॉल्युबल होता है। ई जो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट और स्किन के लिए जरूरी होता है, वो हमारा फैट सॉल्युबल होता है। और विटामिन के जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, वो भी हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है। और जो बाकी वाटर सॉल्युबल होते हैं वो सारा का सारा जितना बी कम्प्लेक्स होता है, और विटामिन सी जो होता है वो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। लेकिन आप देखिए ए, डी, ई एंड के, दे आर सो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं इन विटामिन के। एक तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, अगर क्लॉट नहीं होगा ब्लड तो भी हमें दिक्कत आती है, चोट लग जाती है, क्लॉट नहीं होगा। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो विटामिन के हेल्प करता है उसको, तो वो भी लिपिड सॉल्युबल है। ई जो हमारी स्किन एंड बाकी चीजों के लिए होता है, ठीक है, वो भी लिपिड सॉल्युबल है। और डी जो है हमारी बोन्स के डिपोजिशन के लिए चाहिए, वो भी लिपिड सॉल्युबल है। ए हमारी आइज के लिए लिपिड सॉल्युबल है। मैंने दोबारा आपको समझा दिया है। सो लिपिड्स बहुत जरूरी होते हैं इन 4 काइंड ऑफ विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन के लिए भी, ठीक है। सो इनको एब्जॉर्ब करने के लिए भी चाहिए। सो हमें क्या होता है कि जब हम, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है वो बाकी सारे होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स बहुत लंबे चौड़े ग्रुप ऑफ विटामिन्स का है, और विटामिन सी आल्सो, बी एंड सी, ठीक है। सो हमें लिपिड्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो अब हमें इनके फंक्शन पढ़ने हैं। ए का फंक्शन क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। ए जो होता है वो हमारा जो क्या है, एनिमल ओरिजिन से मिलता है जो फूड है, जिसमें से मिल्क, बटर, घी, एग, फिश, लिवर, ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन ए के। प्लांट फूड में ये रेटिनॉल की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो जो रेटिनॉल होता है वो हमारी आई साइड को ठीक करता है, ठीक है, आई साइड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। रेटिनॉल जो कन्वर्ट होता है बॉडी में, ठीक है, और ये प्रिकर्सर है किसका, विटामिन ए का, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कैरोटीनॉइड, और ये प्लांट फूड से मिलता है, ठीक है। ऑरेंज कलर की और रेड कलर की और येलो कलर की जो भी वेजिटेबल्स होती है ना, उससे हमें ये मिलता है, ठीक है। तो कैरोटीन जो कैरोटीनॉइड जो होते हैं, ठीक है, और बीटा कैरोटीन उन्हीं से मिलता है। तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक और पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर के प्लांट से मिलता है, ठीक है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें स्पिनच से, मस्टर्ड लीफ से, फेनुग्रीक लीफ से बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन से होता क्या है कि ये विटामिन ए की नीड को पूरा करेगा, ठीक है। और विटामिन ए तब तक डिपॉजिट नहीं होगा जब तक कि रेटिनॉल नहीं होगा, ठीक है। हमारी एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज कहाँ होती है विटामिन ई की, अगर हम विटामिन ई को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द रेटिनॉल और इन द फॉर्म ऑफ द कैरोटीन, ये दोनों फॉर्म्स होती हैं जो विटामिन ए की फॉर्म्स है, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब, हम फूड खाते हैं ऐसा जिसमें रेटिनॉल एंड कैरोटीन्स हैं, व्हिच इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन ए,
ये कहाँ से, डाइजेशन स्टमक में होती है और इंटेस्टाइनल सेल से ये एब्जॉर्ब होती है। सो रेटिनॉल को एक कॉम्प्लेक्स बनाता है फैट कंटेनिंग पार्टिकल्स के साथ, जो मैंने बताया ना आपको कि फैट जो है उसकी प्रेजेंस में ही ये एब्जॉर्ब होगा। तो काइलोमाइक्रॉन्स एक ड्रॉपलेट्स होते हैं ब्लड में, जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनकी फॉर्म में कैरोटीन एंड रेटिनॉल बीच में लग के चले जाते हैं, ठीक है। कैरोटीन एब्जॉर्ब्ड इन द सेम वे, कैरोटीन भी सेम वे में एब्जॉर्ब होता है, काइलोमैक्रॉन्स इनको लेके जगह जगह लेके जाते हैं ब्लड में, लिपिड्स में, ठीक है। तो जो रेटिनॉल होता है ना वो एब्जॉर्ब होता है किसकी फॉर्म में, एब्जॉर्ब होता है एज सच फॉर्म्ड इन अ बॉडी फ्रॉम द कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन से रेटिनॉल बनता है, ठीक है, ठीक है। तो और वो ट्रांसपोर्टेड होता है ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ द काइलोमाइक्रॉन। जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं वो एक ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो बीच में लेके जाते हैं रेटिनॉल वगैरह को ब्लड में, फिर आगे आगे जाके डिफरेंट टिश्यूज को सप्लाई करते हैं जहां भी इनकी जरूरत है। आईज में जरूरत है तो आईज में जाके, ऊपर ब्रेन को जाके आईज के पास देंगे, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द टोटल जो एब्जॉर्ब्ड विटामिन होता है ना वो स्टोर हो जाता है किसमें, लिवर में, एंड रिमेनिंग जो 10% होता है ना वो ज्यादा ऑर्गन्स, किडनी, लंग्स वगैरह और एड्रिनल ग्लैंड्स को डिपॉजिट हो जाता है, मतलब सारा का सारा नहीं जाता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है, एक तो ये नॉर्मल विजन को मेंटेन करता है, विजन के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन ए, जो कि जो हमारा पिगमेंट है ना जिसे हम देखते हैं रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन जो होता है वो मेंटेन करता है कॉर्न एंड रॉड सेल्स को, जिससे हम डार्क में और डे में देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें विटामिन ए की जरूरत होती है, ठीक है। रोडोप्सिन हमें डिम लाइट देखने में हेल्प करता है अगर जिसका विजन नॉर्मल है, ठीक है। और फिर बाद में वो चेंज हो जाता है तो हम ब्राइट लाइट में भी देख पाते हैं, ठीक है, डे लाइट में भी देख पाते हैं। और जो हमारी बॉडी की जो रॉड सेल्स एंड कॉर्न सेल्स होती है ना सेल्स की, वो हमें हेल्प करती हैं। अब जैसे क्या होता है कि रोडोप्सिन एक कंटेंट है, तो एक पिगमेंट है हमारी आईज में, ठीक है। तो प्रोटीन प्लस विटामिन ए जब बनेगा, प्रोटीन्स के साथ विटामिन ए मिलेगा, तो हमारी बॉडी में रोडोप्सिन जो है वो एक्टिव हो जाएगा और हमें डिम लाइट में देखने में भी हेल्प करेगा। और जब रेडोप्सिन एक्टिव नहीं होता है तो हम लाइट में भी देख लेते हैं, जब लाइट होती है दिन डे रोशनी में भी हम देख पाते हैं। तो और विटामिन ए जो है सपोर्ट करता है ग्रोथ में, ये स्केलेटन सॉफ्ट टिश्यूज की ग्रोथ में हमें हेल्प करता है, बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द डिजीजेज ऑल्सो। कहते हैं कुछ एपिथेलियल टिश्यू की डिजीजेज होती हैं, लंग की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिससे हमें विटामिन ए एक बेनिफिशियल रोल है प्ले करता है एंड प्रिवेंट करता है हमें इलनेस से, ठीक है, यंग चिल्ड्रन में भी, ठीक है, छोटे बच्चों में। अब विटामिन डी जो होता है इसको हम सनशाइन कहते हैं, ठीक है। तो सनशाइन विटामिन भी हम इनको कहते हैं क्योंकि विटामिन डी सनशाइन से हमें मिलता है, सूरज की रोशनी से, सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है। अगर आपने विटामिन लेना है एट इनएडिक्वेट अमाउंट, सो यू शुड एक्सपोज योर बॉडी टू द सनलाइट, ओके। एंड ये कोई जरूरी नहीं है कि विटामिन डी के लिए आप सिर्फ डाइटरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर आप बॉडी को एक्सपोजर देते हैं सनलाइट का, सो यू शुड बी हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द विटामिन डी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी फंक्शनिंग, ओके। तो अदरवाइज ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन फूड, एग्स, लिवर, बटर से भी हमें विटामिन डी मिल जाता है, ठीक है। इसकी एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज कहाँ होती है, ये विटामिन डी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फैट्स, क्योंकि फैट अगर होंगे तो फैट के थ्रू ही विटामिन डी उसमें डिसॉल्व होके ही एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो बाइल है, सिक्रीशन होती है हमारी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो इफेक्टिव होती है फॉर फैट्स एंड देयरफॉर द विटामिन डी, क्योंकि बाइल जूसेस हमें चाहिए होते हैं लिपिड्स की डाइजेशन के लिए, क्योंकि लिपिड की डाइजेशन के लिए चाहिए और लिपिड में ही विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है, तो उसकी डाइजेशन के लिए भी हमें बाइल जूसेस चाहिए होते हैं, ठीक है। और जो ये होते हैं लिपिड्स, काइलोमाइक्रॉन्स में एक लिपिड वेसिकल्स होते हैं जो उसमें विटामिन डी स्टोर होके ब्लड में जाके आगे तक सप्लाई होता है, ठीक है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहां जहां भी रिक्वायर्ड होता है विटामिन डी, ठीक है। सो विटामिन डी एड्स प्रोसेस ऑफ द मिनरलाइजेशन, हमारी बॉडी में बोन्स में जाके ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो उसको कहते हैं मिनरलाइजेशन। जब बोन्स में जाके ये एब्जॉर्ब होता है तो वो दो तरह से होती है, एक इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, क्योंकि विटामिन डी से कैल्शियम एंड फास्फोरस की भी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है, ठीक है, और हेल्पिंग इन द डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम एंड द फास्फोरस इन द बोन्स।
अब क्या होगा, अगर विटामिन डी भी होगा तो एक तो एब्जॉर्प्शन भी होगी कैल्शियम की और फास्फोरस की, और बॉडी में और बोन्स में जाके और टीथ में जाके कैल्शियम एंड फास्फोरस लग भी जाएगा, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं विटामिन ई पे। जो विटामिन ई हमें बहुत सारे स्टफ्स में मिलता है, वेजिटेबल्स में, एग योक में, बटर में, सैफलार ऑयल में, कॉटन सीड ऑयल में, ग्रेन्स में, डार्क ग्रीनी लीफी वेजिटेबल में, पल्सेस में, नट्स में, ऑयल सीड्स में, ठीक है, इवन दी ऑलिव ऑयल में, कितने सारे ऑयल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें विटामिन ई मिलता है। इसकी भी एब्जॉर्प्शन क्यों कैसे होती है, ये भी लिपिड सॉल्युबल है, ये भी गाइलोमाइक्रोन्स इसको ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, इसके लिए भी लिपिड चाहिए हमें। इसके फंक्शंस हमारी बॉडी में क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जब वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी फूड्स। अब आ गया विटामिन के। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, के स्पिनच होती है, कैबेज होती है, लेटस होती है, ठीक है, एंड एनिमल फूड्स में भी होता है, एग योक में, मिल्क में, और ऑर्गन मीट में, लिवर में विटामिन के बहुत होता है। और ये भी फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए फिर से हमें पता है कि ये लिपिड सॉल्युबल है, तो लिपिड सॉल्युबल ही होंगे, लिपिड में ही डिसॉल्व होगा। सो एब्जॉर्प्शन क्या होती है इसकी, फैट सॉल्युबल, इंटेस्टाइन से होता है, तो इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में से ये एब्जॉर्ब होता है और बॉडी टिश्यूज तक जाता है। ठीक है, विटामिन के इज स्टोर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द बॉडी एंड कंसंट्रेशन इज नॉट वेरी हाई इन अ पर्टिकुलर टिश्यू। ठीक है, सो इसके फंक्शंस क्या हैं, क्योंकि अगर आपके कोई चोट लगती है और ब्लड ऊज आउट कर रहा है, ऊजिंग हो रही है, तो उसमें अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है काम कर रहा, तो विटामिन के अगर होगा तो ही वो हेल्प करेगा क्लॉटिंग फैक्टर की टू क्लॉट दी, अदरवाइज ब्लीडिंग होती रहेगी। इसीलिए इसका नाम है एंटी ब्लीडिंग विटामिन। एंटी ब्लीडिंग विटामिन कहते हैं विटामिन को। तो ये क्या करता है, जो प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसकी फॉर्मेशन होगी तो ही हमारा ब्लड क्लॉट करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन पे। तो हमारे जो विटामिन हैं ब्लड सॉल्युबल वाले, सॉरी वाटर सॉल्युबल वाले, दे आर, सबसे पहले कौन सा है, विटामिन B1 विच इज अ थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, नियासिन एंड विटामिन B12 भी एक साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है, तो ये सारे जो बी कम्प्लेक्सेस है ना, ये एज ए एंजाइम्स के साथ एज ए कोएंजाइम, एंजाइम का फंक्शन मैंने बता दिया डाइजेशन में, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब ये एंजाइम्स के साथ ना एज ए कोएंजाइम काम करते हैं, मतलब एंजाइम्स की हेल्प करने वाले कोएंजाइम्स। ठीक है, सो कोएंजाइम्स की तरह काम करेंगे, उसको हेल्प करने के लिए एक असिस्टेंस चाहिए होती है एंजाइम्स को। तो जो बी कम्प्लेक्सेस है ना, जो मल्टीविटामिन बी कम्प्लेक्सेस हैं, विटामिन्स हैं, ये एज ए कोएंजाइम्स काम करते हैं, मतलब कि एंजाइम्स की हेल्प करने के लिए। अब आप सोचो, एंजाइम्स अगर काम करेंगे तो डाइजेशन होगी, और एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं काम करने के लिए, और कितना काम करते हैं हर अपने डाइजेशन में। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर एंजाइम्स नहीं होंगे, ठीक है, और तो हमारा काम नहीं होगा। और एंजाइम्स की हेल्प करने के लिए कौन होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं। अब जब कोएंजाइम्स होंगे तो ही एंजाइम्स काम करेंगे। तो कोएंजाइम्स कौन होते हैं, मल्टीविटामिन्स। ठीक है, तो मल्टीविटामिन्स नहीं होंगे तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे और डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगी। तो इसीलिए जो विटामिन्स होते हैं वो फूड में लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और जो विटामिन B12 होता है एनिमल और प्लांट फूड्स दोनों से होता है, और बहुत सारे फूड स्टफ्स में, होल ग्रेन सीरियल्स में होता है, व्हीट में, राइस में भी ये होता है। सो दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ द थायमिन। ठीक है, लीन मीट्स में भी, पोल्ट्री में भी, एग्स में भी प्रेजेंट होता है, अगर हम एनिमल फूड की बात करें। ठीक है, तो ये खत्म हो जाता है अगर हम प्रोसेसिंग कर देते हैं व्हीट की। ठीक है, और रिफाइंड व्हीट फ्लोर में इसका अमाउंट कम हो जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ राइस में भी क्या होते हैं, जो पॉलिश राइस होते हैं, ठीक है, वो मतलब पुअर सोर्स बन जाते हैं फिर थायमिन का। ठीक है, स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन जब हम करते हैं तो दे आर द रिच सोर्स ऑफ द थायमिन बी कम्प्लेक्सेस का। और स्प्राउटिंग से, हमारी ग्रोइंग ऑफ जर्मिनेशन करने से, ग्रेन्स को सोक करने से, ठीक है, और 24 आवर रैपिंग इन द मॉइस्ट क्लोथ होने से, ठीक है, फर्मेंटेशन करने से हमारी बॉडी में सॉरी जो हमारे जो स्प्राउट्स होते हैं उसकी क्वांटिटी एंड उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ द अमीनो एसिड्स दे कम ऑन अ सरफेस। राइबोफ्लेविन के भी सोर्सेज हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो किताब में से, वही डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज एंड नियासिन भी। आपने इन सबके फंक्शंस, सोर्सेज
एंड डेफिशिएंसी, बस ये पढ़ना है। विटामिन B12 से भी होता है, ठीक है, इसके भी सोर्सेज हैं। रेन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन C जो है, इसके सारा सोर्सेज क्या होते हैं, सिट्रस प्लांट्स होते हैं, जितने लेमन जूसेस हो गए, ऑरेंजेस हो गए, गुआवा, आंवला, पपाया, ग्रीन लीची वेजिटेबल्स, टोमेटोज, ग्रीन चिलीज, दे कैप्सिकम, दे आर द गुड सोर्सेज ऑफ द विटामिन C, ठीक है। सो विटामिन C जो वाटर सॉल्युबल होता है, ये भी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इसका कॉमन नेम विटामिन C है, बट अदरवाइज साइंटिफिक नेम इसको स्कॉबिक एसिड दिया गया है। सो ये वुंड हीलिंग में काम करता है, डीलिंग विद स्ट्रेस ऑल्सो, व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द स्ट्रेस, हैव अ गुड अमाउंट ऑफ द विटामिन C। एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन में भी हेल्प करता है। अब देखो, हम बात करते हैं प्रॉपर ब्रीदिंग की। प्रॉपर ब्रीदिंग कहाँ से होती है, ऑक्सीजन कैरिंग होने से। ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन प्लस प्रोटीन, ठीक है, आयरन प्लस प्रोटीन। और आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C जरूरत होती है। अगर विटामिन C होगा कम तो हम आयरन खाते रहेंगे, वो ग्लोबिन के साथ एब्जॉर्ब होकर हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा, तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन C जरूरी है। तो विटामिन C देखो कितना जरूरी है। अब ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को एज ए डिस्ट्रक्शन फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे कि फैटी एसिड्स को, विटामिन ए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बनाता है, ठीक है। So with this, I have finished with the second part of the 2 chapters. Okay, so we have finished with the macromolecules and the multivitamins. Second chapter, macronutrients number 1. So tomorrow I'll hope with we will be going to continue with the macronutrient part 2. ठीक है. So I hope I don't want to start any new topic, and if you have any queries, then you can ask me. Okay. So you can type the questions. मैम हाँ जी. मैम जो आपने बताया रिफाइंड ऑयल खाना चाहिए, उससे वो हार्म नहीं पहुंचता, ब्लड क्लॉटिस नहीं होते, बट ये भी सुना है और ज़्यादातर हमने सुना ही है कि रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए, उससे भी बॉडी को हार्म होता है। उससे जब रिफाइंड करने के लिए उसको बार बार गर्म किया जाता है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब मतलब नष्ट हो जाता है, जिससे बॉडी को जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो नहीं मिलता। तो ये कितना सही है मैम, प्लीज बताइए। आप मेरे को एक बात बताइए, आप हाफ ऑफ द क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। जो आपने कहा, आपने आंसर भी साथ में दे दिया है, मैं आपको रिपीट करती हूँ। ज्यादा खरा नहीं खाने चाहिए, जी बॉडी मैम। करते हैं। इसके बाद मैम उसको यही बोला जाता है कि जो रिफाइंड ऑयल है उसको मतलब नहीं खाना चाहिए, वो नुकसान करता है अपने को, ऐसा। तो आप एक रीजन बताई थी कि उसको बार बार आप पहले आपको बताया है कि रिफाइंड ऑयल को अगर आप लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे तो वो नहीं खराब करेगा, ठीक है, तो वो नहीं जी खराब करेगा। लेकिन अगर आप उसको फालतू खाते हैं, और फॉर्म कैसी खाते हैं, फ्राई करके, रिफाइंड ऑयल को जी फ्राई करके। तो फ्राई करने में क्या है कि अगर वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, तो उसके जो सिस फॉर्म होती है वो ट्रांस में हो जाती है। अगर आपने थोड़ा जी फ्राई किया, उसके 1-2 बॉन्ड्स हो सकता है ट्रांस में कन्वर्ट हुए, उसके बाद अगेन जी आप उसे फ्राई करते हैं, उसके बाकी बॉन्ड्स भी ट्रांस में कन्वर्ट हुए, आप उसको फिर से तीसरे दिन फिर से उसमें फ्राई करके खा रहे हैं जो बचा हुआ है, तो उसके बाकी बचे भी शायद ट्रांस फैट में। अब आप देखिए ट्रांस फैट का इतना ज्यादा अमाउंट हो जाता है। प्लीज आप ये जो भी है प्लीज आप बंद कीजिए, ठीक है। और आप देखिए कि एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में वो इतना ज्यादा ट्रांस फैट का अमाउंट हो जाता है कि जी उससे कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक होते हैं, जितना ट्रांस फैट आप लेंगे वो कैंसर कॉजिंग होता है, जी उससे मैम। कैंसर बढ़ रहा है। मैम जी, इसके साथ ही मैम ये कि उसको रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए उसको बार बार गर्म किया जाता है, उसमें कई सारे केमिकल डाले जाते हैं, ऐसा हमने सुना है, तो वो कितना सही है मैम? देखिए उसकी एक फॉर्मेशन है, उसमें केमिकल जी डाल के ही उसको बॉन्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है। देखो सैचुरेटेड क्या होते हैं, उसमें सिंगल बॉन्डेड चेन्स होती हैं कार्बन्स की। तो अगर उसमें कुछ ना जी कुछ चेंजेस करते ही हैं, तभी तो उसमें डबल बॉन्ड्स लाते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐड जी करते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, तो डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, उसकी बॉन्डिंग जी के प्ले करते हैं। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स लाते हैं, बनाते जाते हैं, तो केमिकल की एडिशन होती ही है ऑब्वियसली। तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनते जाएंगे, उतना ही वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनेगा, उतना ही वो सैचुरेटेड नहीं होगा। जी बट अगर आप उसको बहुत ज्यादा फ्राई करेंगे तो वो सिस फॉर्म ऑफ द पॉली अनसैचुरेटेड ट्रांस फैट में चली जाएगी। तो खाना
लिपिड्स कोई भी खाने, चाहे रिफाइंड हो, चाहे सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, कोई भी अच्छा नहीं होता है। यस मैम, और ये भी कि एक ही टाइप का ऑयल यूज नहीं करना चाहिए क्या? क्योंकि अलग अलग ऑयल में, जैसे कि आपने दाल बताया था कि एक ही तरह का दाल नहीं खाना है, वैसे खैर छोड़ रिश्तेदार बहन चोद कॉल करके घर पे पूछे लड़का क्या कहता मैं लेके रैप रिकॉर्ड कर रहा। डिफरेंट काइंड ऑफ रिफाइंड ऑयल्स ही यूज करने चाहिए आपको, कभी भी एक, कभी किसी तरह का, कभी किसी तरह का, कभी किसी तरह का, क्योंकि दे आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज। आजकल डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्टिफिकेशन भी आ गई है, हर किसी में डिफरेंट का काइंड नाम करा लड़का करके टॉप 10,000 है कमाता रिप्लाई करता मैं इतना डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीविटामिन्स होते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो आपको सब लेने चाहिए। अगर आप एक तरह का लोगे तो एक ही तरह का होगा आपका, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, हाँ जी मैडम, हाँ जी। आपने लास्ट टाइम 2 सेंटेंस बहुत बढ़िया बोले थे। एक, जो खाना सुंदर दिखता है वो हेल्दी नहीं है, बिल्कुल और जो सुंदर नहीं दिखता है वो हेल्दी है। और दूसरा सेंटेंस आपने बोला था कि आइसक्रीम और चाय वो 2 छोड़ दीजिए। मुझे आपसे आज कोई ऐसी टिप्स चाहिए जो हम लाइफ में अच्छी हेल्थ के लिए खुद बेटर हेल्थ कर सके। थैंक यू। उसका आज सबसे पहला एक टिप मैं आपको देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि दिन सुबह से शुरू होता है, आप जागते हैं, दिन शुरू होता है, तो तभी से आप खाना पीना शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए 24 घंटे होते हैं, अगर हम दिन को और रात को एक दिन को पूरे 24 घंटे में डिवाइड करते हैं, और चलो हम इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं 12, ठीक है। अगर कोई रात के 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक सोता है, और सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक जागता है, हमने वैसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हमने इसको डिवाइड किया 12-12 घंटे में। हालांकि हम जागते ज्यादा देर के लिए भी हैं, 2-3 घंटे के लिए, 12 नहीं 14-15 घंटे के लिए हम जागते हैं, सोते हैं हम 10 घंटे के लिए, कई लोग तो उससे भी कम सोते हैं, पर चलो हमने डिवाइड कर लिया है 2-2, आधा-आधा, ठीक है। तो आप देखिए कि जब हम 8 बजे सुबह शुरू हो जाते, उठते हैं, उठते सारी हम कुछ ना कुछ, सबसे पहले लोगों की सबसे आदत है खराब, जो बेड टी होती है। अगर आप रात को 8-9-10 बजे भी सोए हैं, 10 या 11 बजे भी, सुबह आप 7-8 बजे उठते हैं, अगर आपकी 7-8-9 घंटे की भी नींद है, ठीक है, तो उसमें आप उठते सार ही बेड टी लेते हैं। आप ये कभी नहीं सोचते हैं जो रात को आपने खाना खाया था वो आपका डाइजेस्ट हो गया है, और आपका डाइजेस्ट हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया, अब आपने कितने घंटे से खाया नहीं है, और आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश है, और कुछ एंजाइम्स हैं जो ऐसे बैठे हैं एक्टिव होके, कि जब कुछ खाना आएगा देन दे विल बी एक्टिव, वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स को, और आप उठते सार ही चाय पीते हैं, और वो कई लोग दूध वाली चाय, चीनी के साथ चाय, उबाल के चाय पीते हैं, विच इज फुल ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपके कैंसर कॉजिंग होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करेंगे। और जैसे ही आप गरम गरम चाय पीते हैं, आपकी बॉडी के एंजाइम्स एक्टिव हैं, आपकी बॉडी में कई बार क्या होता है कि कोई बाइल एसिड सिक्रीट हुए होते हैं, समटाइम्स आपने रात को कुछ ऐसा खाया था जिससे कुछ एसिड सिक्रीट हुए होते हैं बॉडी में, आपकी पीएच बहुत ज्यादा हाई हुई, लो हुई होती है, एसिडिक हुई होती है, और ऊपर से आप चाय पीते हैं, वहीं से आपका काम शुरू हो जाता है। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी बॉडी में रात भर खाना खाया है, उसके बाय प्रोडक्ट्स बने होते हैं, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स है, कभी हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स हैं, सुपरऑक्साइड रेडिकल्स बने हैं, एसिड के अमाउंट लो हुआ आपकी बॉडी में। सो आपकी बॉडी में कुछ हद तक टॉक्सिन्स क्रिएट हुए होते हैं, जिनका बाहर निकालना या उनको न्यूट्रलाइज करना या उनको खत्म करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो आपको डिटॉक्स वाटर्स लेने चाहिए। सिंपल पानी भी लोग पीते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, बट पानी क्या होता है, एक न्यूट्रल पीएच का होता है, और अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी हुई है तो आपको एल्कलाइन वाटर्स लेने चाहिए। और एल्कलाइन वाटर्स जो होते हैं वो बनाने के तरीका, बड़ी तरह के एल्कलाइन वाटर है, एल्कलिनिटी सेट करने के लिए बड़ी तरह के तरीके हैं, जिनको हम डिफरेंट काइंड ऑफ डिटॉक्स वाटर भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर्स लेने चाहिए, और गुड अमाउंट ऑफ डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए, ताकि, और आपको थोड़ी देर वेट भी करनी चाहिए, सो दैट वाटर शुड वर्क। उसके बाद व्हेन यू पास द यूरिन, तो डिटॉक्सिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको प्लेन वाटर भी लेना चाहिए, सो दैट यू शुड हैव अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ यूरिन, सो दैट यू कैन पास, एंड द बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं दे शुड गो विद दैट। आफ्टरवर्ड्स आपको बहुत केयरफुली खाना खाना चाहिए, जिसकी पीएच एसिडिटी ना क्रिएट हो, हल्का खाना खाना चाहिए मॉर्निंग में, ठीक है।
वो तो फिर आपके डाइट प्लान है, मैं कितनी तरह का खाना बताऊं, लेकिन आपको एक टिप मैंने दे दी है, जब आप रात को सो के सुबह उठते हो तो टी वगैरह से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, आपको डिटॉक्स वाटर से या प्लेन वाटर से तो एटलीस्ट अपना डे स्टार्ट कीजिए, और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लेना चाहिए। उसके बाद आपको अपने ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, उसके बाद भी दिन में कई बार आपको एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए सिंपली, और या फिर प्लेन वाटर का कंटेंट रखना चाहिए, सो दैट यू कैन पास यूरिन, जो आप बाद में भी खाना खा रहे हैं, जो उसके बाद में भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो उसके बाद भी बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो एज ए टॉक्सिन्स काम कर रहे हैं बॉडी में पूरा दिन, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट करते हैं फिर लंच भी करते हैं, उनकी डाइजेशन होती है, उसमें बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें भी टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो आपको बार बार पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि वो टॉक्सिन्स साथ के साथ बन रहे हैं साथ के साथ रिमूव हो जाए थ्रू द यूरिन, और क्लीनिंग ऑफ द बॉडी होनी शुरू हो जाए। लेकिन बात है कि और आपको स्ट्रेस फैक्टर कम रखना चाहिए और फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, जब हो सकता है आप वॉक कीजिए, जब हो सकता है आप स्टैंडिंग पोजीशंस पे रहिए, जितनी ज्यादा हो सके फिजिकल एक्टिविटी कीजिए इन चीजों पे। और डाइट चार्ट्स आप अपने अच्छे प्रोटीन और बैलेंस, प्रोटीन रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच एंड लिपिड रिच भी खा सकते हैं, बट प्रोटीन ज्यादा होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स का अमाउंट कम कर दीजिए अगर आपका वेट ज्यादा वेट लॉस करना चाहें, लेकिन प्रोटीन्स कम नहीं करने हैं आपको, अब मिनरल्स एंड विटामिन्स कम नहीं करने, और पानी का अमाउंट कम नहीं करना है, रफेज जरूर खानी है। अगर आपको कम करना है आपकी डाइट में से, तो कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स का अमाउंट कम करके फूड लेना शुरू कीजिए, डाइट लेनी शुरू कीजिए, ठीक है। तो और थैंक यू पानी का मैडम। अमाउंट ज्यादा रखिए और डिटॉक्स वाटर से करिए। चाय थैंक को यू आप अपनी बॉडी में से निकाल दीजिए, अगर चाय पीनी है तो ब्लैक पीजिए, कॉफी पीनी है तो ब्लैक पीजिए, क्योंकि उसमें एंटी एजिंग फैक्टर होते हैं और उसमें फ्री रेडिकल्स नहीं होती। जैसे ही आप उबाल के चाय पीते हैं, जैसे उसमें दूध ऐड करते हैं मीठे वाली, उसमें फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, विचार कार्सिनोजेनिक। ओके, सो थैंक यू मैडम। कैंसर कॉजिंग है, बीपी क्रिएट करते हैं हाई, और आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस होती हैं, डायबिटिक आल्सो डिपेंडेंट अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स। हालांकि डायबिटीज पूरी इस पे डिपेंडेंट नहीं होती, बट दीज आर सम ऑफ दी क्या कहते हैं उसको, एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इन डिजीज को लीड करते हैं, ठीक है। थैंक यू मैडम। हाँ। वैसे बहुत लोग बोलते हैं डिटॉक्स वाटर लीजिए, लेकिन क्यों लेना चाहिए वो आज आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। थैंक यू। मैम बीपी हाई की रीजंस आपने हमें एक्सप्लेन किए, लेकिन बीपी लो क्यों हो जाता है ये भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, यस, दिस इज आल्सो लो, जस्ट वो इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस से होता है। सोडियम पोटेशियम जो मैंने लास्ट टाइम चैप्टर में पढ़ाया था, मेम्ब्रेन बाउंड सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस जब हो जाता है तब वो सोडियम उसके ऊपर आपका बीपी लो होता है, ठीक है। तो वो भी गुड नहीं होता है, क्योंकि अगर तो बीपी हाई हो रहा है तब वो फास्ट चलता है, और जब बीपी लो हो रहा है तब भी वो स्लो स्पीड से चलेगा। तो हार्ट को वेट नहीं करानी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सेंसरी ऑर्गन जिसने पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में आए वो भी सप्लाई करने हैं, और ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन को बाइंड करके वो भी पूरी बॉडी में सप्लाई करनी है, और वो ब्रेन को भी जाएगी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर आपका ब्लड स्लोली स्लोली मूव तो करके इसका जाएगा, मतलब ये मैम इसका ये तो ऐसा है कि भाई बीपी हाई इसलिए होता है क्योंकि इसे आर्टरीज में जम जाता है, और ये इसका क्योर हुआ कि अपन सोडियम पोटेशियम ले लेंगे तो वो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बट मैडम रीजन क्या हुआ कि इसका कि नहीं, आप गलत कर रही हैं, सोडियम पोटेशियम तब नहीं लेना होता, सॉल्ट स्ट्रेस को कम करना होता है जब बीपी मैम पर लो सब होता तो है। यही बोलते हैं ना कि अगर आपका बीपी लो हो रहा है तो फिर आप सॉल्ट बढ़ा दीजिए अपना। तब लेना है, बीपी हाई में नहीं लेना है। नहीं नहीं मैम, हाई की नहीं कह रहे, मैं कह रही हूँ कि अगर लो में अपना बीपी लो लेना है, हाँ, तो लो में ये अपना क्योर हुआ कि अपन ने वो लिया, सॉल्ट लिया या पोटेशियम लिया, सोडियम लिया, बट इसका रीजन क्या हुआ? जैसे अपना बीपी हाई का रीजन ये हुआ कि वो आर्टरीज ब्लॉक होने लग जाती हैं, पर बीपी लो वो अलग किस चीज है। बीपी लो अलग तरीके से होता है, क्योंकि जो ब्लड है ना वो सेल्स में फ्लो करता है, उसमें मैकेनिज्म फर्क है। वो सोडियम पोटेशियम पंप है, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, तो वो बीपी को लो, अगर सोडियम सॉल्ट्स कम है तो वो बीपी को लो कर देते हैं, ठीक है। वो आयनिक और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस होने की वजह से, कम होने की वजह से आपका बीपी लो होता है। तो जब बीपी लो होता है और आर्टरीज में फ्लो नहीं करेगा, हार्ट तक नहीं पहुंचेगा, तो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल नहीं पहुंचते हैं, तो सब कुछ लो होना शुरू हो जाता है। वो उसका लिंक सोडियम पोटेशियम से है। अभी जब हम बायोकेमिस्ट्री आगे आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको वो पूरा मैकेनिज्म उस दिन एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके, ये थैंक यू। लिपिड्स का चैप्टर था इसलिए था,
ठीक है, अभी अभी आगे चलते जाइए, आई विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी मैकेनिज्म, ठीक है जी। So I think the time is finished and I really wanted to close this class, and if you have any questions you can type in a WhatsApp group. I'll try my best to answer those questions. Okay, thank you so much. I'm just closing this class. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.